Today, sir, we are very much happy that such an eminent person from NIT Jaipur were with us. And this is only possible due to this digital platform. And I also want to give thanks to the TCube teams to organize these things with the help of this Google platform. And I'm very much happy to Projesh sir and Anurag sir that you are coordinating this very essential articles for the students. So this is the second day that Anurag sir told, and last day Rahul sir very uh, greatly explained that create the job roles and how to prepare students themselves for the IT industry. So today is the second day and the topic is data mining, and I'm very much happy that this type of articles which are not in our curriculum, these are covered with the help of such eminent teachers like you, sir. So it is a very much pleasure. And for students, I just want to say that it is a very very essential topics nowadays. Let me tell you in Hindi that suppose तुम कोई अगर आप लोग कोई मोबाइल खरीदने जाते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पे, अगर कोई मान लो सपोज सर्च किए, तो देखोगे नेक्स्ट टाइम जब फ्लिपकार्ट ओपन करते हो तो देखोगे उसी तरह का मोबाइल फोन्स आपके सामने आ जाता है. सिमिलरली जिस इट इज सेम फॉर यूट्यूब ऑल्सो. सपोज अगर तुम कोई आर्टिकल या फिर कोई सॉन्ग्स सर्च कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम देखोगे उसी सिमिलर टाइप ऑफ सॉन्ग्स आप लोग के सामने आ जाता है यूट्यूब पे. सो इट इज अ पार्ट ऑफ डाटा माइनिंग विच एवर आई नो, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ बिग डाटा. सो ये सारा टॉपिक हम लोग का सिलेबस के अंदर नहीं है. सो बट नाउअडेज सिचुएशन एंड मार्केट both are demanding these things. So there are so many universities, autonomous colleges who are which they are already incorporated these things in their syllabus, but traditional universities में अभी तक ये सारा covered up नहीं हुआ है. So it is a very great platform and scope to you all to learn from sir. NIT से है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के वेरी वेरी renowned टीचर है. सो आई होप अगर तुम लोग का कोई भी डाउट है तो सर से पूछ सकते हो इन चैट बॉक्स. सर विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स. दो इट इज अ वेरी vast topic, vast area. Big data is a not a very small area that you can cover in 1 or 2 hour, but still we can have some brief idea in this 1 or 2 hour session. So I am very happy that sir is with us. So sir, please, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Now I request to continue the session and please, sir. Okay. Yogesh, sir. Thank you, Anurag. So myself, Dr. Yogesh Kumar Meena. Good morning, students. So now we will start the topic. I am going to share the presentation. Is it visible, Anurag? Hello? Yes, sir, visible. Visible? Okay. Yes, sir, visible. Yeah. Okay, thank you. So today's topic that we are going to discuss is introduction to data mining. So let me give you a background of it first. So the next slide that you have in front of you is big data. So I could write so many bits over here. And in reality, each of us are dealing with big data at this point of time. So there has been enormous data growth in both commercial as well as scientific databases due to advances in data generation and collection technologies.
Now, if I talk about the time where in 90s, where we do not have such kind of storage capacity as well as computing facilities, the data was very less. But nowadays, the collection and the data availability is very, very, very large. We have automated data collection tools, database systems, websites, computerized societies which collects the data, and the places from where we can get the data are like from business perspective, the websites, e-commerce websites, the transactions, the stock markets. So there a lot of data is available. We will discuss about it, that what exactly data is, but let's first focus on how much big it is. In science, if we talk about the data that generated from remote sensing, bioinformatics, scientific simulations, and if we talk about society and every other people or persons, then social networks, news, digital cameras, and we take the pictures and upload on the Facebook, the social platforms, Instagram, Twitter. So there are a lot of places where we post so much of data in our daily life. And in the especially in the this time period of lockdown and this pandemic, most of us are only playing with the mobile and devices, and we are having everything online. So you yourself is are generating a number of data values. So this big data has to be analyzed in some automated way, and the automated way is called as data mining. So if you go to a gold mining place where the gold is going to be mined from raw material, the whatever they have, similar to that, data is there in a jail. So in jail, so much of data is available, but now we have to take out the useful information from that. The proper definitions will come in the upcoming slides. For the timing, the automated analysis of massive data sets is called as data mining. Now, again, the background part of it, the competence which is there in the business of all the giants like Google, Facebook, Yahoo, Amazon, again produce a lot of data. If you talk about the Yahoo, they generate petabytes of web data, or similar to Google. Google is generating more as compared to Yahoo nowadays. If you talk about Facebook, again crores of active users are there, and most of you will have your Facebook accounts, and you are daily checking that account maybe one or several number of times. Purchases at department grocery stores, e-commerce websites like Amazon and Flipkart. If we talk about our daily needs, we go to Grofers, Big Basket. So we are going to purchase so many items online, especially in this pandemic session. So that's why the visits per day are in lakhs, maybe in crores. The bank credit card transactions, when we are doing some transactions through this Amazon, Flipkart, and all that, so most of the people chooses on payment by using either credit card or maybe internet banking. So again, so much of data is generated. So what exactly the business competence over here? So the competence is that each and every company would like to provide better customized services to its users. For example, you talk about search engines. If you talk about Google, then and Yahoo, so most of you and as well as me prefer Google as a search engine as compared to Yahoo, because the services given by the Google is pretty much better as compared to Yahoo. So in this competitive environment, every company, every giant is having pressure to be strong and strongly or conveniently service their customized services. Okay, and and provide better solutions to them. So make a good relationship with them. If you talk about other than this business and all that, in scientific domain, if we talk about the data, so mostly the data is collected like remote sensing data on satellites. NASA archives or petabytes of Earth science data per every year. You can see the Google Earth. Okay, so if you took a look at the Google Earth Pro, if you download on your desktop, you can even check the status of the area that is visible on Google Earth
maybe 20 years back. Like if you would like to check what was there here in 1980, then you can check to the timeline of the Google Earth Pro, and then you can check the images of that place. Now you can think of that how much data they have generated for the whole world. In India specifically, most of the data is available of last 20 years, if you talk about especially Google Earth Pro. So data mining basically helps scientists in automated analysis. Again, the talk is about automated analysis of massive data sets. So either you can look at the images, the brain, the space, maybe the earth temperatures, maybe the biological data. Okay, if you talk about, a lot of data is generated and that needs to be analyzed properly in order to extract useful information for some sort of decision making. So there are great opportunity to solve society's major problems using data mining techniques. One of them is improving healthcare and reducing cost. Nowadays, if you go to some medical place or so forth to diagnose something, okay, so the cost is depending upon the kind of problem you have, but still it is much higher. So we have this data, and is it possible to reduce these costs? Yes. Is it possible if we properly analyze the data? Another approach for society could be to find an alternate for green or energy sources, predicting the impact of climate change. Our earth is facing the serious issue of global warming. Okay, temperature is increasing day by day. So how we can predict the climate change impact and take some certain measures so that we can save our earth to be facing some sort of disasters. Reducing hunger and poverty by increasing agriculture production. So again, we have the data of crops, that what kind of crops farmers are having, basically growing basically, and analyzing that data, we can try to increase the production which is produced by the agriculture especially. So there are a lot of places where we can solve the society's major problems using the data mining techniques. So everywhere we are talking about big data, so much data is there. We need to analyze this data properly using automated tools. This is the basis of data mining. Now, coming to the formal definition of it, extraction of interesting, non-trivial, implicit, previously unknown, and potentially useful patterns or knowledge from huge amount of data. So extraction of interesting, so basically that is not trivial, not implicit, but that is implicit, previously unknown, but that is not known as of now, and potentially useful. So big data is going to be analyzed for these particular terms, and then finally some outcome will be there that could be used as a knowledge, and that knowledge could be used for some decision making process. Another the similar kind of definitions, non-trivial extraction of implicit, previously unknown, and potentially useful information from data. So we are talking about data. From data we will process the data, we will get the information, and using that information we will get the knowledge, and that knowledge is going to be used for some decision making process. Exploration and analysis by automatic or semi-automatic means of large quantities of data in order to discover meaningful patterns. Again, the same thing again is coming, that automatic means, by using automatic means, we need to extract the gold which is there inside the data, meaningful patterns. And another name, alternate name of this data mining process is knowledge discovery in databases. So you can find out this term at so many places, KDD. So this is basically knowledge discovery in databases. So if you look at the basic flow process of a knowledge discovery in databases process is, we will have input data and we will get some outcome in the form of information. Prior to that, there are three major steps: data pre-processing, data mining technique that is going to be applied, post-processing, and then information.
In data pre-processing, we basically have feature selection, dimensionality reduction, normalization, data subsetting. In post-processing, we have filtering, visualization, and pattern interpretation. These terms might be difficult as of now for you, but as we will progress to the presentation, these becomes easy to understand. If you look at the another flow process of KDD, so you have data situated at different places. So like one data center is there in Jaipur, one data center is in there Udaipur, one data center is there at some other place. So from different repositories, you will integrate the data first, and you will have a collection of data values, the target data. Okay, and then you will pre-process it. Pre-processing means if there are some missing values in the data, or there are some outliers, some uh, noisy data, you have to remove that first. And then after pre-processing, the pre-processed data has to be transformed in the way it can be used as an input to the data mining process. So this pre-processing much more pre-processing and transformation is much more important, and that will be given as an input to the data mining algorithm. And from that data mining algorithm, whatever the output you are going to get, you will visualize that, evaluate that in the form of patterns, maybe graphs, or maybe whatever the source you have. So this is a typical process of knowledge discovery in databases. So if elaborating the steps of KDD process, first of all, you have to understand about the application domain. So what exactly the problem is, and for what kind of problem we would like to develop the solution. Okay, so and what kind of data is there. Then creating a target data set, data selection as shown in the diagram, the process flow. Then cleaning and pre-processing, and as I am saying that this is going to take 60% efforts of it. 60%. It means that most of the time you are busy with data cleaning and pre-processing. Then comes data reduction and transformation. So here you can reduce the dimensionality and all that. So again, dimensionality might be a difficult term as of now for you, but just after it, we will have examples of data, and then it will be clear that what exactly dimensionality and all that. So this is then rest of the things are choosing a function of data mining algorithm, pattern evaluation, and knowledge discovery. All are okay. So this process is simple and clear. So before moving further, let's have some examples. Okay, so how to differentiate a data mining task and a normal transactional task? Suppose that you would like to go to bank and ask the person which is there on the seat that, okay, how much is the balance I have in this account number? Then this is a simple query. You are not going to get any analytical feedback from the person to whom you are asking this question. He will simply give you the balance that you have. But if you ask something different, like, okay, can you explain that whatever I spent, whatever the debits I have in last 3 months are on the higher side or on the lower side as compared to what I spend or debit in the quarter prior to that. So then he has to analyze that information, and definitely that person is not going to do this process. He will say, okay, look at your uh, statement and you analyze yourself. So we don't have any automated way. Now look at this slide, and the first statement is that look up phone number in a phone directory. Simply retrieving a phone number from a directory is not a data mining process. It's simply searching process. But if you ask certain names which are more prevalent in certain locations of Mumbai, for example, Rahane, Rao, Bhav in Juhu area. So if you are talking about these kind of analytical parts, then this is a data mining task. Next example, query a web search engine for information about Amazon. Agar aap, if you
search for Amazon in a web search engine, and then you get some output, you will get some links for that. This is simply a searching process, not an analysis process, but that is the information retrieval process. Grouping together similar documents written by search engine according to their context. So if I would like to group two different kind of categories, Amazon Rainforest or Amazon.com, okay, written by the search engine, then identifying these similar documents is a mining task, or you can say related to information retrieval plus data mining task. Grouping people of similar sizes together to make small, medium, and large t-shirts. You see, when you go to supermarkets, you don't have a specific number on the t-shirts. Most of the places you will find out small, medium, and large, extra large, double XL. Okay, so now for each and every person, if a company is going to make the t-shirts, then it is very expensive for them. In order to produce some sizes which can fit to a particular group, they apply a data mining technique such as clustering. This is again a new name, clustering. We will discuss about that. I'm just explaining the use of data mining and the example, the way or the ways in which you can do this data mining task and how it is different from the normal task of retrieval, searching. Okay. In marketing, segment customers according to their similarities to target marketing. So every day you get a call, madam, you are interested in this loan, sir, you are interested in this or not. So they get your numbers at some places and then they try to do target marketing on you. If you talk about text mining, given a collection of text documents, we want to organize them according to their content similarity. Just discuss now the same thing. In image processing and retrieval, similar images according to a specific criteria may be grouped. For example, two persons, a single person has taken 6 images in different nodes. So to identify that these 6 images belongs to a single person, we can apply again the clustering process. Okay, so grouping process. So these all are data mining tasks, and simple searching and query tasks are not data mining tasks actually. So you should be able to differentiate it. Whenever some analysis part is coming, you can say that process is a data mining task. Okay, so the places from where we can get this data are relational databases, data warehouse, transactional databases, और कुछ हमारे पास एडवांस डेटाबेसेस और इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज भी हैं, स्पेशल एंड टेम्पोरल डेटा, जो टाइम से रिलेटेड डेटा होता है, टाइम सीरीज डेटा, एंड कुछ स्ट्रीम डेटा भी होता है जो बहुत तेजी से हमारे पास ऑनलाइन मिलता है, मल्टीमीडिया डेटाबेसेस इमेजेस का, और जो टेक्सचुअल डेटा होता है वो हम वेबसाइट से निकाल सकते हैं, पीडीएफ की फॉर्म में आपके पास है, डॉक फाइल है, कोई टेक्स्ट फाइल है. तो इस तरीके से हमारे पास डेटा अलग अलग तरीके का हो सकता है. अब हमने ये जान लिया कि डेटा माइनिंग होता क्या है, कि यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना बहुत बड़े डेटा में से. अब वो निकालेंगे कैसे, उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि डेटा आखिर है क्या. अगर हमें डेटा समझ में आ गया कि डेटा आखिर है क्या, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर. अब डेटा की अगर हम बात करें तो आप सबने भी कहीं ना कहीं अपना डेटा एंटर किया होगा. जैसे हम फॉर्म भरते हैं कहीं पे कॉलेज में, आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका पता क्या है. तो ये जब आप अपने कॉलेज में भी ये डेटा देते हैं तो आपकी एक डेटा फाइल बनती है, उसमें आपका नाम, आपका आईडी नंबर, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, एंड देन यू विल हैव सम अदर थिंग्स लाइक योर CGPA, आपने पिछले सेमेस्टर में क्या लिया क्या नहीं लिया. आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक 2 डायमेंशनल स्पेस में रहती है, जहां पे ऑब्जेक्ट्स और उनकी सिमिलरिटीज का कलेक्शन भी हम जिन्हें कह सकते हैं. सो हम बात करेंगे डेटा से रिलेटेड एट्रीब्यूट और ऑब्जेक्ट्स की. सो डेटा इज बेसिकली रॉ फैक्ट एंड फिगर्स. कोई भी वैल्यू जो है हमारे पास, जैसे 4 इज अ वैल्यू, दैट इज अ डेटा. राम किसी का नाम है, वो हमारे पास डेटा है. ओके, किसी का श्याम है, किसी का मधु है. सो
लाइकवाइज दिस वी हैव नेम्स, तो वो डेटा है हमारे पास, कोई भी वैल्यू है डेटा है. So collection of data objects and their attributes is basically a database. An attribute is a property or characteristic of an object. Examples are eye color of a person, temperature value. Attribute is also known as a variable, field, characteristic, dimension or feature. तो अब हम पहले बात कर रहे थे ना वेरिएबल्स की, फील्ड की, कैरेक्टरिस्टिक की, डायमेंशन की. तो बेसिकली यही होता है. A collection of attribute described an object. बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है. जैसे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? उसका नाम हो सकता है, आईडी नंबर हो सकता है, हमारे पास उसका एड्रेस हो सकता है. इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीजें हो सकती है स्टूडेंट से रिलेटेड. और ऑब्जेक्ट इज आल्सो नोन एज ए रिकॉर्ड, लेकिन उन सारी एट्रीब्यूट वैल्यूज का एक कलेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट. जैसे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, उसका पूरा डेटा आपके पास आ गया. अब हम इसे एग्जाम्पल की फॉर्म में देखें तो कुछ इस तरीके से आपका डेटा स्टोर है डेटाबेस फाइल्स के अंदर, रिलेशनल डेटाबेसेस में. तो वहां पर आपको सीरियल नंबर मिलेंगे, एट्रीब्यूट के नेम मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर डेटा की अगर हम बात करें तो रिफंड है, मार्टियल स्टेटस है, देन सैलरी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन है, और उसने वो चीट किया है या नहीं अभी तक किसी भी. तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है. तो सिमिलरली स्टूडेंट में क्या होगा? स्टूडेंट डेटा की बात करेंगे तो सीरियल नंबर होगा, आईडी नंबर, स्टूडेंट नेम, सीजीपीए, फोन नंबर, एड्रेस एंड सो ऑन. तो ये जो जितने भी आपको फर्स्ट रो में दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स. तो अगर यहाँ कर अगर आप बात करें तो कितने एट्रीब्यूट्स हैं सीरियल नंबर को अगर काउंट ना करें तो? रिफंड, मार्टियल स्टेटस, सैलरी एंड चीट. इस पर्टिकुलर डेटा ऑब्जेक्ट के लिए 4 एट्रीब्यूट्स हैं, और इन 4 एट्रीब्यूट्स को ही हम कहते हैं डायमेंशनलिटी ऑफ द डेटा. मतलब आपकी डायमेंशनलिटी कितनी हो गई? 1 2 3 4. सो हमारे पास जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो उस डेटा की डायमेंशन को बताते हैं. अब डायमेंशन की बात आई है तो हम बात करेंगे एक्स वाई जेड डायरेक्शंस की. हमने ज्योमेट्री में देखा है 2 डायमेंशन मतलब एक्स एंड वाई डायरेक्शन, तो आपके पास एक प्लेन हो जाता है. 3D की अगर बात करेंगे तो 3 डायमेंशन हो गए आपके पास, एक्स वाई एंड जेड. सो यहां पर हमारा डेटा 2D फॉर्मेट में ही है जो प्लेन में हमें दिख रहा है, लेकिन जो डेटा की डायमेंशनलिटी है, रिफंड है एंड मार्टियल स्टेटस है, सैलरी है, फिर हमारे पास चीट है. तो हमारे पास यहाँ डायमेंशनलिटी 4 है. रिफंड इज एक्स, martial state is y, salary is z, and another dimension whatever you name it, cheat. So there could be n number of dimension in a particular data depending upon the number of attributes. तो सीधी सी बात है, जितने ज्यादा एट्रीब्यूट्स हमारे पास होंगे उतनी ही ज्यादा हमारी डायमेंशनलिटी होगी, बिकॉज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज इक्वल टू डायमेंशनलिटी ऑफ द डेटा. अब इस डेटा में कितने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास? 10 रिकॉर्ड हैं. ये तो आपका हेडर है जिसमें सीरियल नंबर, रिफंड, मार्टियल स्टेटस, सैलरी एंड चीट है, नाम है इन एट्रीब्यूट्स के, और जो टोटल रिकॉर्ड्स हैं आपके पास वो 10 हैं. तो इस तरीके से कुछ डेटा आपके पास रहता है. अब हम इन डेटा की बात करें तो ये जब तक हम प्रोसेस नहीं करते ये इन्फॉर्मेशन नहीं बनता है. डेटा अगर पड़ा हुआ है तो वो जेल में है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास. सो यहां पर आप देखेंगे यस नो यस नो, इस तरीके का डेटा कहलाता है नॉमिनल डेटा और कैटेगरिकल डेटा, जहां पे कोई कैटेगरी हो या कोई नाम लिखा हुआ हो. और जो आप देख रहे हैं 125 सैलरी, 1000, 100 के, 70 के, 120 के, 95 के, ये है सैलरी. सैलरी एक न्यूमेरिकल डेटा है. तो मोटे तौर पे अगर हम कहें तो डेटा 2 तरीके का हो सकता है हमारे पास, एक तो न्यूमेरिकल डेटा और एक हो सकता है कैटेगरिकल डेटा. अब हम इसे कैसे प्रोसेस करेंगे आगे, लेट अस सी. आई होप दिस इज क्लियर कि एक कैटेगरिकल डेटा क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है. तो इन वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं. तो मोटे तौर पे अगर कहें तो न्यूमेरिकल डेटा जिसमें कोई नंबर होता हो, कैटेगरिकल डेटा जिसमें कोई कैटेगरी होती हो या कोई नाम होता हो. अगर इनको फर्दर हम कहें, थोड़ा और डिवाइड करने की कोशिश करें तो और भी कई सारे नाम हैं, मैं थोड़ा बता देता हूं उनके बारे में. इंटरवल स्केल, ये होता न्यूमेरिकल ही है बट एक इंटरवल में होता है. जैसे सैलरी 10,000 से लेकर 1 लाख हो सकती है. हाइट 1 फुट से लेकर 2 फुट हो सकती है. तो एक रेंज में आपके पास वैल्यूज आएंगी. मैं कहूं कि सारे स्टूडेंट्स की हाइट 1 फीट से लेकर
2.5 फीट 1 मीटर से लेकर 2 मीटर के बीच में है, तो वो किसी की 1.1 होगी, किसी की 1.2 होगी, 1.3 होगी। तो एक रेंज में, एक इंटरवल में वो वैल्यूज आएंगी, बट होने में तो सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज ही हैं, बाइनरी वैल्यूज। अब बाइनरी में कभी कभी हम, जैसे जेंडर ऑप्शन होता है हमारे पास, फॉर्म में भी भरते हैं तो मेल फीमेल, तो ये आपकी कैटेगरिकल एट्रीब्यूट है। और अगर इसको न्यूमेरिकल में रिप्रेजेंट करें तो बाइनरीज सभी जानते हैं, 0 एंड 1, 1 एंड 0। कैटेगरी की फिर से बात करें, यस एंड नो, ट्रू एंड फॉल्स। और अगर न्यूमेरिकल टर्म्स में बात करें तो 0 एंड 1। नॉमिनल डेटा भी हो सकता है हमारे पास, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी। ऑर्डिनल डेटा भी हो सकता है, टेक्सचुअल डेटा ही है, कैटेगरिकल डेटा ही है, बट एक ऑर्डर में फॉलो करेंगे, जैसे सोल्जर, सर्जेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, एक्सेट्रा। कभी कभी हमारे पास डेटा वैल्यूज जो हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल सैलरी कॉलम है, यहां पर आपको दिख रहा है, अगर इस सैलरी की रेंज जो इस कॉलम की, आप देखिए यहां डिफरेंस करिए, रो का मतलब एक रिकॉर्ड, कॉलम का मतलब एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यूज। दोबारा से सुनिए, अगर हम रो की बात कर रहे हैं तो एक पूरे रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, पूरे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कॉलम की बात कर रहे हैं तो रिफंड इज अ कॉलम, और उसमें कुछ वैल्यूज हैं हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, हर एक रिकॉर्ड के लिए। सैलरी की कुछ वैल्यू है हर एक रिकॉर्ड के लिए। तो मान लीजिए सैलरी में आपके पास वैल्यूज हैं 1, 10, 100, 1000। तो ये क्या हो रहा है कि इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, किसी को तो 1 रुपए मिल रहा है, किसी को 1000 रुपए मिल रहे हैं। तो इस टाइप की वैल्यू जहां पे डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, उसे हम कहते हैं रेशियो स्केल्ड वेरिएबल्स। तो अगर हम मोटे तौर पे कहें अभी हाल फिलहाल, तो दो ही तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल। जो आपके काम है क्या है, वो मोस्टली यही है, न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल। न्यूमेरिकल जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज हो, जहां पे कैटेगरी हो वहां पे आपके पास लाइक सिंगल, मैरिड, चीट, यस नो, यस नो, यस नो, ये सारे आपका कैटेगरिकल एट्रीब्यूट है। चीट भी कैटेगरिकल एट्रीब्यूट है, मार्टिल स्टेटस भी, रिफंड भी, और सैलरी आपका न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट है। अब हमें कंप्यूटेशन करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स अगर हैं हमारे पास, उनके बीच में डिस्टेंस निकालनी पड़ती है। जैसे ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, सीरियल नंबर 1 पर एक ऑब्जेक्ट है, सीरियल नंबर 2 पे एक ऑब्जेक्ट है। इन दोनों ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट वैल्यूज ये आपकी दी हुई है। अब ये पता करना है कि एक आदमी का नाम सीरियल नंबर है एक, एक आदमी का सीरियल नंबर है 2, दोनों में कितना डिफरेंस है या दोनों सेम ही है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस मेजर का, जो नॉर्मली हम जो न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर ही लगाते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल कहीं अभी आएगा उसका एग्जांपल भी, कोई वैल्यू है एक्स और वाई डायमेंशन में, या दो एट्रीब्यूट वैल्यूज किसी ऑब्जेक्ट सीरियल नंबर 1 की 6 एंड 2, और ऑब्जेक्ट 2 की है 6 एंड 3। सो 6 तो पहला एट्रीब्यूट सेम हो गया, तो 6 माइनस 6 0। दूसरे में एक का डिफरेंस है 2 एंड 3, तो 2 माइनस 1, 3 माइनस 1। बट हमें हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव ही लेनी पड़ती है। आप देखेंगे इस फॉर्मूला में जो मैनहट्टन डिस्टेंस मेजर बता रहा है कि समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस yi। एक्स और वाई अगर दो ही एट्रीब्यूट है आपके पास, एक्स वाई जेड 3 है, तो तीनों को लेना पड़ेगा। तो आई की वैल्यू 1 से लेकर 3 वेरी करेगी। तो जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं आई इक्वल्स टू 1 2, उतने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट तक आप वेरी करेंगे n को। और जो दोनों ऑब्जेक्ट जिनके बीच में आप डिस्टेंसिंग, हर एट्रीब्यूट की डिफरेंस निकाल के उनको सम करते जाएंगे, और पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है। पॉजिटिव इसलिए लेनी है, मान लीजिए एक आदमी खड़ा है लोकेशन एक्स वाई डिस्टेंस पे 6 एंड 2 पे, और दूसरा खड़ा है 5 एंड 3 पर। तो 6 माइनस 5 तो 1 हो गया, एंड 2 माइनस 3 हो गया -1। दोनों को जोड़ेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसलिए हमेशा एरर और ये इस मैनहट्टन डिस्टेंस या एरर कभी भी निकालते हमेशा हर एक पार्ट को पॉजिटिव ही कंसीडर करना पड़ेगा, ताकि उसका कैंसलेशन ना होकर जीरो ना हो जाए। फिर आपके पास आती है यूक्लिडियन डिस्टेंस, जिसमें आपने बहुत ही बार किया हो, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 स्क्वायर एंड रूट ऑफ दैट। तो वैल्यूज का स्क्वायर करके, सब्ट्रैक्ट करके, उनका स्क्वायर करके, एंड देन सबको जोड़कर एंड देन उनका स्क्वायर रूट निकालना, वो यूक्लिडियन डिस्टेंस है। अब थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि
दो डॉक्यूमेंट्स सिमिलर है, एक डॉक्यूमेंट है ए, एक डॉक्यूमेंट है बी, पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, उन दोनों को सिमिलरिटी चेक करना कि दोनों कितने सिमिलर हैं। तो उसके लिए हम निकाल सकते हैं कोसाइन सिमिलरिटी से। तो डिस्टेंस एंड सिमिलरिटी में अगर आप रिलेशन की बात करें तो दोनों अपोजिट हैं। डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिमिलरिटी। डिस्टेंस, दो दोस्त हैं आपस में मिल रहे हैं, बहुत सिमिलर हैं इसलिए मिलते हैं, तो दोनों में सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस की अगर दो दोस्तों की बात करूं तो दोनों में बिकॉज कॉमन एट्रीब्यूट उनके मिलते हैं तभी तो दोस्त हैं। अगर डिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब दुश्मन है, उनमें आपस में जो एट्रीब्यूट है मैचिंग नहीं कर रही कहीं पे। तो डिस्टेंस और सिमिलरिटी आपस में दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिमिलरिटी। अब हम दो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें। एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट ए है और एक बी है। अब इनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है उनमें टर्म, सेंटेंस लिखे रहते हैं, पैराग्राफ्स लिखे रहते हैं। तो जो टर्म्स होती है ना, फॉर एग्जांपल लाइफ, प्लेयर, डर्टी, म्यूजिक, जितनी भी वो टर्म्स होती हैं, डिक्शनरी टर्म्स, हर एक टर्म की फ्रीक्वेंसी हम चेक करते हैं कि वो टर्म कितनी बार आई है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास डॉक्यूमेंट बने हुए, उसमें लाफ एक बार आया था, प्लेयर एक बार आया, डर्टी एक बार आया और म्यूजिक एक बार आया है। जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसमें लाफ दो बार आया है, प्लेयर 0 बार आया, डर्टी एक बार आया, म्यूजिक एक बार आया है। अब ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं, ये कैसे चेक करें? तो ये फॉर्मूला होता है कोसाइन सिमिलरिटी का। तो जो आपका हर एट्रीब्यूट है उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हुए उनका एक सेकंड नॉर्म से डिवाइड कर दें तो आपकी कोसाइन सिमिलरिटी मिल जाती है। कैसे? लॉफिंग की बात करें तो दोनों टेक्स्ट में है बट उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाय जो डॉक्यूमेंट 1 है उसमें सेकंड नॉर्म स्क्वायर करके सारी वैल्यूज को सम करके रूट निकालना है। इसी तरह से डॉक्यूमेंट 2 में जो वैल्यूज उनको स्क्वायर करके रूट निकालना है। तो आपकी ये वैल्यू आ गई 0.72, मतलब डॉक्यूमेंट ए और बी में 0.72% और 72% समानता है। फर्क किस लिए आया? ये प्लेयर और डर्टी वर्ड्स की वजह से। अगर तो दोनों एग्जैक्टली सेम है तो ये वैल्यू सेम रहेगी और ये जो कोसाइन सिमिलरिटी वैल्यू आपको मिलेगी 1। इसका मतलब अगर दो डॉक्यूमेंट बिल्कुल सिमिलर हैं तो उनमें डिस्टेंस रहेगी 0। डॉक्यूमेंट्स अगर बिल्कुल अलग अलग हैं तो उनमें डिस्टेंस रहेगी 1 और सिमिलरिटी रहेगी 0। सो ये एक बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है ग्रुपिंग करने के लिए, क्लस्टरिंग करने के लिए आपस में। तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं और उनको समान चीजों को एक ग्रुप में डालना है तो देन यू हैव टू अप्लाई दीज फॉर्मूलाज। प्रोसीजर हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हमारा समझने का इतना सा है कि इन फॉर्मूलाज को कैसे लगाया जा सकता है। कुछ और भी हैं डिस्टेंसेस, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये स्लाइड्स आपको मिलेंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। ओके, अब डेटा माइनिंग किस किस तरीके से, डेटा हमें समझ में आ गया डेटा किस तरह से दिखता है। डेटा इस टेबल की तरीके से दिखता है। तो डेटा ऐसा हमें दिखेगा और इसमें न्यूमेरिकल डेटा भी रहेगा, कैटेगरिकल डेटा भी रहेगा। अब हमको क्या करना है? ठीक है, अब इस डेटा के अंदर एक क्लास एट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल इस डेटा के ऊपर अगर आप देखेंगे तो चीट इज द क्लास एट्रीब्यूट। अब ये क्लास एट्रीब्यूट क्यों कहा हमने इसको, बाकी सब नॉर्मल एट्रीब्यूट क्यों हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, रिकॉर्ड नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं, उसने रिफंड दे दिया है, पैसा चुका दिया है पहले का, उसका शादी नहीं हुई, सैलरी 125,000 है, तो वो चीट नहीं किया है। हमारे पास डेटा है, ये कहीं से आया हुआ है कि वो उसने चीट नहीं करेगा वो, और रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि उसने अभी तक चीट नहीं किया है कभी भी। इसी तरीके से कोई दूसरा पर्सन है जिसने रिफंड भी नहीं दिया, शादीशुदा भी था और उसकी सैलरी थी 100,000, उसने भी चीट नहीं किया। किसने चीट किया? एक आदमी था सीरियल नंबर 5 पे। देन इस सीरियल नंबर 5 पे उसको आप देखेंगे, सीरियल नंबर 5 पे आप देखेंगे कि इसका रिफंड का वैल्यू है 9 एंड मार्टियल स्टेटस है डाइवर्स्ड, सैलरी है 95,000, तो उसने चीट किया है। तो कहीं ना कहीं ये डाइवोर्स या कोई भी चीज है एट्रीब्यूट की वजह से ये चीटिंग हो रहा है। सो इसी तरीके से आप देखेंगे कि
रिकॉर्ड नंबर 8 में चीट किया है, रिकॉर्ड नंबर 10 में चीट किया है। तो क्लास हम कह रहे हैं कि ये जो डेटा है वो किसी आदमी का बता रहा है कि उसने चीट किया है या नहीं, तो उसकी कैटेगरी चीटर में आती है कि नहीं आती है। इसी तरीके से अगर हम स्टूडेंट का कि स्टूडेंट इंटेलिजेंट है या पुअर है, उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से हम कर सकते हैं। सो इसीलिए आपके पास इस डेटा में एक क्लास एट्रीब्यूट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो डेटा तो आपका जो होगा उसमें न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल ही रहेंगे, बट एट्रीब्यूट जो हैं वो कुछ नॉर्मल एट्रीब्यूट रहेंगे और कुछ क्लास एट्रीब्यूट हो सकते हैं जो क्लास कैटेगरी बताते हो कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब हम बात करते हैं डेटा माइनिंग में क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। सो जो मेजर हमारे जो फंक्शंस हैं डेटा माइनिंग के, वो है एसोसिएशन रूल एनालिसिस, क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन, सो एंड क्लस्टरिंग, जो हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर है। तो इन तीन के बारे में हम मेनली फोकस करेंगे। टास्क तो बहुत सारे हैं, कंसेप्ट डिस्क्रिप्शन है, आउटलायर एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस है, बट अगर आप क्लासिफिकेशन, एसोसिएशन और क्लस्टरिंग ही बेहतर तरीके से समझ पाते हैं देन हमारा आज का काम हो जाएगा। हम बात करेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन की। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, किसी स्टूडेंट के बारे में बताना है कि ये इंटेलिजेंट है या कुछ गड़बड़ है, या फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोन का। मान लीजिए एक बैंक है, वहां पर एक मैनेजर है, उसका काम है लोगों को लोन देना। अब उस मैनेजर के पास पुराने 1000 लोगों का डेटा है जिसमें उनका सारा नाम पता है, कितना लोन लिया था, उसने उसको चुकाया है या नहीं किया है। तो फाइनली उसके पास उन सब की कैटेगरी इंफॉर्मेशन है कि किसने लोन चुकाया और किसने नहीं किया है। तो लोन रिपेमेंट यस एंड नो, ये किस किसने लोन का रिपेमेंट किया है, किसने नहीं किया। तो ये पुराना हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, डेटा जेल में है, उसको एनालाइज करके एक मॉडल बनाना है। उस मॉडल का यूज करके कोई नया कस्टमर आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ही जाता हूं वहां पे लोन लेने के लिए, तो वो मेरा डेटा चेक करेंगे कि आप कहीं इस डेटाबेस में तो कहीं मैच नहीं खा रहे हो, या कहीं आपके जो एट्रीब्यूट वैल्यूज हैं, आपकी सैलरी, आपका प्रोफेशन, आपकी पर्सनल लाइफ का कुछ डेटा, आपका और रहने का पता, आपका रिलीजन, वट एवर इट इज, जो भी है सब कुछ है, सब कुछ उन्होंने पूछ लिया। उसके बाद उन्होंने एनालाइज करके ये बता दिया कि आप इस लोन के लायक हैं या नहीं। तो वो कैसे करेंगे, उनके पास पुराना डेटा है, उसको वो एनालाइज करेंगे, कोई मॉडल बनाएंगे जिसे कहते हैं क्लासिफिकेशन मॉडल, और आपको आंसर देंगे। तो क्लासिफिकेशन इज बेसिकली गिविंग लेबल और क्लासिफाइंग अननोन डेटा। कुछ मॉडल बना हुआ है बॉक्स में, उसमें वो डेटा इनपुट करना और वो सिंपली डिसीजन देगा कि ये आदमी लोन को रीपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो बैंक लोन नहीं देगा उसको, तो बैंक के तो फायदा हो गया उसमें। तो एक ऑटोमेटेड सिस्टम बन जाए सब जगह, इतना बड़ा डेटा कौन एनालाइज करेगा पुराने डेटा को, तो ऑटोमेटेड सिस्टम बन जाए जिससे कि कोई डिसीजन मेकिंग हो जाए। दूसरा, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन की बात, कि किसी को क्लास लेबल देना, किसी की कैटेगरी बताना कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपके डेटा के हिसाब से। दूसरी चीज होती है प्रिडिक्शन। अब हम रोज देखते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी। मैं खुद रोज लेके बैठता रहता हूँ टेम्परेचर, सारी वैल्यूज को, और पता लगता है कि वो लोग कह रहे हैं कि बारिश होगी और असल में बारिश होती ही नहीं है। पिछले 10 दिन से तो मैं जयपुर में ये देख रहा हूँ कि हमारे घर के आसपास तो बारिश हो ही नहीं रही है। खूब कल भी बहुत जबरदस्त बादल हुए, प्रिडिक्शन भी था पर नहीं हुआ। सो जो साइंटिस्ट हैं वो प्रिडिक्ट कर देते हैं अपनी चीज को, बट जरूरी नहीं वो सही हो, बट कुछ लेवल तक वो प्रिडिक्शन। अब ये होता कैसे है प्रिडिक्शन? प्रिडिक्शन के लिए आपको, अभी उसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कल कितना टेम्परेचर हो सकता है। तो जो पुराना डेटा है वो कैसा बिहेवियर दिखा रहा है, तो पुराना जो डेटा था आज से जैसे 1 साल का एनालाइज करूंगा, तो उस टाइम देखूंगा कि किन कंडीशंस में अगले दिन टेम्परेचर कैसा था, उसी हिसाब से आज की जो कंडीशंस है और इसी सिनेरियो में, इसी परिस्थितियों में कल कितना टेम्परेचर हो सकता है, तो वो भी हम एक डेटा माइनिंग एल्गोरिदम ही वहां पे लगाएंगे। और किस किस तरीके से कर सकते हैं, डिसीजन ट्री हो सकते हैं, न्यूरल नेटवर्क आपने नाम सुने हो कहीं पे, क्लासिफिकेशन रूल्स, बहुत सारी टेक्निक्स है हमारे पास। बट आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन में। वो डिफरेंस ये है, प्रिडिक्शन जब हम करते हैं तो किसी न्यूमेरिकल वैल्यू का करते हैं मोस्टली, जैसे कि कल कितना टेम्परेचर होगा,
30 डिग्री, कल कितना प्रेशर रहेगा इतना, कल कितना इस स्टॉक इस पर्टिकुलर स्टॉक का कितना प्राइस होगा 20 रुपया, इसका नेट एसेट वैल्यू कितना होगा, कल कितने एडमिशन होंगे 10। तो जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज में आप बात कर रहे हो वो तो कहलाता है प्रिडिक्शन। लेकिन आप ये कहो कि ये स्टूडेंट पास होने लायक नहीं है इस सब्जेक्ट में, whether he can pass a particular tough subject or not depending upon his past history, वो एनालाइज करोगे आप मॉडल से, कोई पर्टिकुलर आपके पास मॉडल होगा प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन का, तो उसको क्लासिफाई करेगा कि हाँ ये व्यक्ति इस क्लास से बिलोंग करता है, तो वो एक कैटेगरिकल वैल्यू देगा उसको, है तो प्रिडिक्शन ही। आप प्रिडिक्शन में समझिए कि प्रिडिक्शन में आप क्लास भी प्रिडिक्ट कर सकते हो और एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन क्लासिफिकेशन में तो आप एक क्लास ही प्रिडिक्ट करोगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इन जनरल हम मोटा मोटा डिफरेंस की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन में तो आपको किसी की क्लास बतानी होती है कि ये भाई साहब इस क्लास से बिलोंग करते हैं, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस क्लास से बिलोंग करता है। प्रिडिक्शन में आप कहेंगे कि हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू देना चाहते हैं on the basis of past knowledge that we have, past data. Okay, so now I feel कि क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, तो हम क्लस्टर की बात करें। क्लस्टरिंग इज प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डेटा। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 बच्चों की क्लास है, टीचर आया नहीं है, तभी अचानक कहीं से माइक में अनाउंस हुआ 3 ग्रुप बना लीजिए। तो 100 बच्चे क्या करेंगे, 3 ग्रुप बनाएंगे। अब आप सोचिए, जब किसी ने ये कहा कि आप 3 ग्रुप बना लीजिए 100 लोगों का, तो ग्रुप कैसे बनाएंगे? सीधी सी बात है, 2 दोस्त हैं वो अलग ग्रुप बनाएंगे, 3 दोस्त अलग बनाएंगे, 4 दोस्त, पर मुझे तो अल्टीमेटली कितने ग्रुप बनाने हैं? 3 ही बनाने हैं। तो शुरू में क्या होगा, माइक पे अनाउंस होगा प्लीज मेक 3 ग्रुप्स, तो क्या होगा, 2-2 3-3 के ग्रुप में कम से कम 30-40 ग्रुप बन जाएंगे। फिर से अनाउंस होगा माइक में, अरे भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक ग्रुप नहीं बनाया 3 आपने। तो क्या करेंगे कि वो जो 2-2 3-3 दोस्त खड़े हुए हैं वो ये देखेंगे कि हमारी किससे ज्यादा पटती है, हमसे सिमिलर और कौन है, उनके साथ एडजस्ट हो जाएंगे। तो अब मैं देखूंगा कि मेरे पास 5-6 ग्रुप बने हुए हैं अभी भी, फिर से मैं अनाउंस करूंगा माइक पे, नहीं नहीं 3 ग्रुप बनने चाहिए बस। तो क्या करेंगे, फिर से भी थोड़ा इधर उधर होगा आपस में, और अल्टीमेटली मुझे 3 ग्रुप मिल ही जाएंगे अगर मैं फोर्सली वहां पे कहूंगा तो वो फोर्सली 3 ग्रुप कैसे बनेंगे, जिनमें उस पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो आपस में सिमिलर हों पर दूसरों से अलग हो। सो मैक्सिमाइजिंग इंट्रा क्लास सिमिलरिटी एंड मिनिमाइजिंग इंटर क्लास सिमिलरिटी, ये दोनों टर्म्स हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड तीसरी चीज हमारे पास होती है एसोसिएशन एनालिसिस, इसमें कि हम जो एट्रीब्यूट की वैल्यूज है उनके बीच में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल, आपने एक बुक शॉप पे गए और आप कंप्यूटर ग्राफिक्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की किताब साथ साथ खरीद रहे हैं, तो एक रिलेशन हो गया, ज्यादातर बच्चे कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग खरीद रहे हैं। हो सकता है किसी शॉपिंग के मॉल में या वहां पे डायपर के साथ बियर ज्यादा बिक रही है, तो एक एसोसिएशन हो गया ना, तो वो क्या करते हैं उन दोनों प्रोडक्ट को साथ साथ रख देंगे एनालिसिस करके। वो हम देखेंगे कि एसोसिएशन लेवल माइनिंग कैसे होता है ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो उन दोनों सामान को चूज करें। तो साथ साथ जो बिकने वाली चीजें उनको साथ साथ रखने से क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, हमारी कॉस्ट, वो बिक्री है जो भी है हमारी वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारे पास 3 चीज हमने देख ली, क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन। क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्लास होनी चाहिए, क्लास की नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्लास है हमारे पास डेटाबेस में, जैसे कि हमारे पास ये डेटा था, इसमें अगर हमारे पास क्लास की इंफॉर्मेशन है तो एक नया मॉडल बना सकते हैं जो कि नए डेटा को क्लास असाइन कर सके। लेकिन अगर क्लास नहीं है देन हम क्लासिफिकेशन वहां नहीं लगा सकते, ठीक है। Similar is applicable to prediction, but in cluster analysis we are saying that we can group the data on some similarity basis. तो अगर इस डेटा में से मैं एक क्लास की इंफॉर्मेशन उड़ा दूं और सिर्फ डेटा रखूं तो भी मेरा काम चल जाएगा, मुझे सिंपली जो सेम टाइप की चीजें हैं उनको आपस में ग्रुप करना है, सिर्फ इतना सा काम मुझे करना है। तो ये मेरा काम करेगा क्लस्टर एनालिसिस का एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये 3 आपके पास समझ लीजिए सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। सो क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। कैसा डेटा होना चाहिए, अब आप ये देखिए,
जो वेरिएबल्स नॉर्मल, जो एट्रीब्यूट्स नॉर्मल होते हैं उन्हें हम प्रेडिक्टर्स कहते हैं, और जो फाइनली क्लास होती है जिसे हम प्रेडिक्शन करने हैं और जिस क्लास को जिससे क्लासीफाई करना है उसे क्लास एट्रीब्यूट कहते हैं। तो लेबलिंग अनलेबल्ड डेटा से क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है। तो हमारे पास टारगेट में यस एंड नो क्लास है यहाँ पे। तो हम ये कुछ पैरामीटर्स है कि आउटलुक अगर वेदर का रेनी है, टेम्परेचर हॉट है, ह्यूमिडिटी हाई है और विंडी हवा नहीं चल रही है, तो आप गोल्फ को प्ले कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो ये पुराना डेटा है कुछ कि अगर ऐसा ऐसा होता था तो उस दिन गोल्फ खेला जा सकता था कि नहीं खेला गया था। तो ये चीजें, वो पुराना डेटा हमारे पास रखा हुआ है। अब हमें बताना है, इससे एक मॉडल बनाना है क्लासिफिकेशन का। ये ट्रेनिंग डेटा कहलाता है। जो हमारे पास पुराना जो डेटा है होता है वो ट्रेनिंग डेटा होता है, और जो जिसको चेक करके जिसका आंसर देना होता है, जिसकी क्लास बतानी होती है, वो हमारा है। सो जो डेटा है हमारे पास, जो डेटा वेयर हाउस से अलग अलग जगह से मैंने इकट्ठा कर लिया, वो कहीं रख लिया, उसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, रिकॉर्ड्स होने चाहिए और साथ में क्लास एट्रीब्यूट होनी चाहिए क्लासिफिकेशन के लिए। अब डिसीजन ट्री एक एल्गोरिथम होता है जिससे कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं। वो कैसे करते हैं? डिसीजन ट्री में आपको अदर देन द क्लास एट्रीब्यूट, जो बचे हुए एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से सबसे पहले कोई एक सिलेक्ट करना पड़ता है, रूट ऑफ द ट्री, जिससे कि हम पहला स्प्लिट करेंगे ट्री का। सो a decision tree is a flow chart like a structure where each internal node, this is some theory, it's better come to this figure. So यहां आप देखेंगे तो आउटलुक एट्रीब्यूट को सबसे पहले सिलेक्ट किया गया है, जिसमें कहा गया कि आउटलुक की पॉसिबल वैल्यूज है सनी, ओवरकास्ट, रेनी। तो अगर आउटलुक सनी है, उसके बाद लिखा गया है विंडी एट्रीब्यूट। विंडी एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। एंड फाइनली आप देखेंगे लीफ नोट्स में यस एंड नो दिया हुआ है, वो आपका क्लास एट्रीब्यूट है। आउटलुक में ओवरकास्ट के साथ सीधा यस लिखा हुआ है, रेनी के साथ फिर से ह्यूमिडिटी एट्रीब्यूट के साथ कुछ वैल्यूज हैं। तो जितनी लीफ नोड्स ट्री में होंगी वो आपके रूल हैं। तो ये बनेंगे, एक डिसीजन ट्री एल्गोरिथम होता है। तो ये स्प्लिट कैसे करते हैं, ये कैसे पता करते हैं कि सबसे पहला एट्रीब्यूट आउटलुक होगा, टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगा या विंडी होगा टारगेट को अचीव करने के लिए? तो एक एल्गोरिथम लगाया जाता है एंट्रोपी के यूज करके। तो उसमें जिसका एंट्रोपी सबसे, एंट्रोपी इज बेसिकली द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब कितना डेटा में सर्टेनिटी नहीं है उसका एंट्रोपी ज्यादा होगा। तो जिसका सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी है वो हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। तो जिसकी एंट्रोपी सबसे कम आती है वो एट्रीब्यूट आपको इसमें से सिलेक्ट करना है, आउटलुक में से, टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, विंडी में से। तो आउटलुक की सबसे कम आई तो आउटलुक को पहला स्प्लिट कर दिया। अब आउटलुक इक्वल्स टू सनी, अगर आप फिल्टर लगा दें इस डेटा पे तो जो डेटा बचेगा उसके ऊपर फिर से आपको डिसीजन ट्री का एल्गोरिथम लगाना है और पता करना है कि आउटलुक को छोड़ के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंडी में से अब किसके बेस पे स्प्लिट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ओवरकास्ट की बात करें तो ये पता चला कि ओवरकास्ट करते ही तो सारे एक ही क्लास से बिलोंग हो गए रिकॉर्ड्स, प्ले गोल्फ वाला। तो जैसे ही ओवरकास्ट हो, मतलब जैसे कोई नया हमारे पास एट्रीब्यूट आएगा कि एनवायरनमेंट कैसा है, ओवरकास्ट, आउटलुक कैसा है, ओवरकास्ट है, तो ठीक है आप खेल सकते हैं आराम से हमेशा, ये हमारे पास डिसीजन में है। इसी तरीके से तो हमारे पास 5 रूल बन गए, आउटलुक इक्वल्स टू सनी, विंडी इक्वल्स टू फॉल्स, देन क्लास इक्वल्स टू यस। इसी तरीके से दूसरा रूल, आउटलुक इक्वल्स टू सनी, विंडी इक्वल्स टू ट्रू, देन प्ले गोल्फ इक्वल्स टू नो। इफ आउटलुक इक्वल्स टू ओवरकास्ट, देन प्ले गोल्फ इक्वल्स टू यस। इफ आउटलुक इक्वल्स टू रेनी, humidity equals to high, the class target is no. If outlook is rainy, humidity is normal, then finally you can play golf, yes. So जैसे भी कोई नया अननोन सैंपल हमारे पास आता है तो इस ट्री के ऊपर उसे लगा देते हैं और हमें उसकी कैटेगरी मिल जाती है। तो ये कहलाता है क्लासिफिकेशन यूजिंग डिसीजन ट्री। और क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं फ्रॉड डिटेक्शन में, जैसे कि प्रेडिक्टिंग फ्रॉडुलेंट केसेस एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शंस। अप्रोच क्या है? आपके पास क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स हैं एंड इंफॉर्मेशन ऑन यूजर अकाउंट होल्डर्स की भी आपके पास इंफॉर्मेशन है। सो आप उसके बेसिस पे बता सकते हैं कि वहां पे कुछ फ्रॉड है या नहीं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी। तो देन यू कैन इजीली शो दैट वेदर दिस कैन बी ए फ्रॉड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन और नॉट। सिमिलरली अगर आपके पास कोई मोबाइल कंपनी है और
कस्टमर्स कहीं जा रहे हैं दूसरी जगह पे, तो उसके लिए भी आप एक मॉडल बना सकते हैं कि क्यों जा रहे हैं, क्या ऐसा रीजन है। सो क्लासीफाइंग उनका एनालिसिस आप कर सकते हैं, तो आपको लॉयलिटी मॉडल उसका पता कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर हम क्लासिफिकेशन प्रोसेस को लगा सकते हैं। फाइन। सो अब क्लासिफिकेशन में तो आपने क्या, हम प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं कि कल क्या टेम्परेचर होगा। तो जब हम आप प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट हो सकता है, न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट को ही तो हम प्रिडिक्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे। सो इन क्लासिफिकेशन आप देखेंगे इस फिगर में भी, तो जो प्लस प्लस और माइनस माइनस ये दो क्लासेस हैं कि प्लस वाली एक क्लास है, माइनस वाली एक क्लास है, कुछ ऐसा दिखेगी। क्लस्टरिंग के केस में तो सारा डेटा एक जैसा ही दिखेगा, बस आपको उसको ग्रुप करना है। आप देखेंगे कैसे करेंगे, वो एग्जांपल्स हम बताएंगे। रिग्रेशन में क्या होता है कि डेटा कुछ एक ऐसे दिखेगा। अब आपको क्या करना है, कुछ एट्रीब्यूट के थ्रू जो प्रिडिक्शन जिसका करना है कि जैसे टेम्परेचर कल क्या होगा, तो क्या रिलेशन है उस टेम्परेचर का बाकी एट्रीब्यूट के साथ, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो रिग्रेशन में आपको आपके डेटा को फिट करना पड़ता है, या तो एक स्ट्रेट लाइन के, या किसी कर्व के, या किसी हाइपरप्लेन के। तो रिग्रेशन इज अ डेटा माइनिंग मेथड that predicts the number. It's a statistical methodology that helps estimate the strength and direction of relationship between two or more variables. जो वेरिएबल जिसके बेसिस पे हम ये फाइनल वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं, वो वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और फाइनली जिसका प्रिडिक्शन करना है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसका आप किस पे डिपेंडेंट है, वो बाकी जो जिनके ऊपर हम ये रिग्रेशन लगाएंगे, जिनके बेसिस पे आप इसे प्रिडिक्ट करेंगे। ओके, सो रिग्रेशन का एग्जांपल हम यहां देखेंगे। तो हमें एक लाइन की इक्वेशन पता होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो एक लाइन है, इसके थ्रू हमें इसको रिग्रेशन लगाना है। सो इसके लिए हमारे पास कुछ कैलकुलेशन है। जो लीनियर रिग्रेशन है उसके लिए हमें y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू w1x प्लस w0। तो ये जो x है यहाँ पर, ये इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट है और y डिपेंडेंट है। तो y बेसिकली आप मान लीजिए कि टेम्परेचर है, और x कोई वैल्यू है प्रेशर की या कुछ और है, या सेट ऑफ वैल्यूज है x1 x2 x3, एक वेक्टर है जिसके थ्रू आप y की वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, जिससे ये समझ में आ जाए कि आखिरकार x के साथ y कैसे वेरी कर रहा है। So to conduct a regression analysis, we need to solve W1 and W0. So how we can do it? So we can do it in this way. So let all the values are there with you. You need to first compute x bar. जो ये x वैल्यूज आपको दी हुई है उनका एवरेज निकाल लीजिए, और जो y वैल्यूज आपको दी हुई है ऑलरेडी, क्योंकि डेटा माइनिंग का मतलब डेटा कुछ दिया हुआ है हमें पहले, और y बार निकाल लीजिए। और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन वाले फॉर्मूले से, वेरिएंस वाले फॉर्मूले से आप W1 को निकाल लीजिए। W1 जो ये कोफिशिएंट है आपका m, जो स्लोप है, वो कैसे निकालेंगे, xi माइनस x बार 1 to n, जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं n हमारे पास, xi हर वैल्यू को x बार में से कम करना है, और y को y बार में से कम करना है उससे करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे, और xi माइनस x बार स्क्वायर को नीचे डिवाइड करना है सम करके, और फिर W0 में इक्वेशन से निकाल लेना है। अब हम सीधे एग्जांपल पर आते हैं। आपके पास कुछ एम्प्लॉयर्स का डेटा है, एंड यहां पे आप देखेंगे कि 10 एम्प्लॉयर्स का डेटा है, उनका एक्सपीरियंस और उनकी सैलरी आपको दी हुई है। सो अगर आप देखेंगे कि यहां पर आप देखेंगे कि कुछ एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी वैल्यूज चेंज हो रही है। So let me put it full screen again. So कुछ वैल्यूज के साथ आपका फिर से चेंज हो रहा है सैलरी। तो ये डेटा आपको दिया हुआ होगा। अब हमें ये प्रिडिक्ट करना है, मान लीजिए कोई नया बंदा है जिसका 7 साल का एक्सपीरियंस, और 7 साल का एक्सपीरियंस ये कहीं दिया नहीं है, तो उसकी सैलरी कैसे कंप्यूट करें। तो ये डेटा आपको दिया हुआ है। नाउ यू हैव टू
predict the salary for 7 year for the person who have this 7 year of experience. तो हम जो कंप्यूटेशंस कर रहे हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले आप x और y की वैल्यूज को यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। एक्सपीरियंस इज योर x एंड प्रिडिक्ट करना है y। तो xi माइनस x बार आपका 9.1 है, एवरेज वैल्यू ऑफ x, जो ये सारे एक्शन का एवरेज वैल्यू आपके पास 1.1 आ रहा है, और जो y वैल्यूज हैं उनका एवरेज वैल्यू आपके पास आ रहा है 55.4। सो xi माइनस x बार हर वैल्यू को आप लिख देंगे सारे रिकॉर्ड्स के लिए, yi माइनस y बार भी लिख देंगे, और xi माइनस x बार का स्क्वायर भी लिख देंगे, और yi माइनस y का भी स्क्वायर लिख देंगे, और xi माइनस x बार और yi माइनस y बार का मल्टीप्लीकेशन भी लिख देंगे। और ये सारी वैल्यूज कंप्यूट करने के बाद आप सीधे सीधे फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो आपका W1 निकल के आ जाएगा 3.112, जो आपका कोफिशिएंट निकालना, और W0 आपका निकल के आ जाएगा y बार माइनस ये जो W1 है मल्टीप्लाइड बाई x बार, तो W0 भी आ गया। अब आपके पास इक्वेशन आ गई रिग्रेशन की, y इक्वल्स टू 3.112x प्लस 27.08। सो ये जो लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन आपके पास आई है, अब आप x की वैल्यू पुट करिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपने क्या किया, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके रेस्पेक्ट में आपने इन सारी वैल्यूज को फिट किया, तो x वैल्यूज को फिट किया सो दैट आपके पास y वैल्यू मिल जाए। सो इसे हम कह लेते हैं रिग्रेशन एनालिसिस, और दिस पर्टिकुलर विल बी कॉल्ड एज लीनियर रिग्रेशन। सो प्रिडिक्शन के लिए आप रिग्रेशन को यूज करेंगे। सो जैसे मान लीजिए एक एट्रीब्यूट की जगह ज्यादा होंगे तो हमारे पास x1 की जगह x1 x2 भी, x की जगह x1 x2 हो जाएगा, and then this formula will be changed accordingly. So similarly you can have another example which slides you will get. Then we have non-linear regression, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, that will be complex for you. Now let's discuss the third thing, that is clustering. अब हम कह रहे हैं कि clustering is a technique for finding similarity groups in data called clusters. That is groups, data instances that are similar to each other to one cluster, and data instances that are very different far away from each other into different clusters. तो वो जो मैंने क्लास का एग्जांपल आपको दिया था कि जो सिमिलर काइंड के लोग हैं, सिमिलर टाइप के जो लोग हैं उनको तो रखना है एक साथ, और जो अलग अलग हैं उनको हमें अलग अलग जगह पे रखना है, अलग अलग टाइप के जो लोग हैं। तो क्लस्टरिंग को हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी कहते हैं, और जो आपका क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन है उसको हम सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब मैंने स्पेसिफिकली पहले भी कहा है कि क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन में एक आपको क्लास और टारगेट एट्रीब्यूट होना चाहिए आपके पास। अगर क्लास एट्रीब्यूट आपके पास नहीं है तो आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, और क्लस्टरिंग में हम उस क्लास एट्रीब्यूट को प्रोसेसिंग में काम में नहीं लेते हैं, तो सुपरविजन नहीं होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और क्लासिफिकेशन में आप लोग सुपरविजन रखते हैं कि इसका क्या क्लास हो सकता है, इसकी वजह से हम उसे कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रोसेस। अगर टेक्निकली हम कहें तो लर्निंग प्रोसेस में जो लर्निंग हो रही है, जो मॉडल डेवलप हो रहा है, उसमें क्लास एट्रीब्यूट को यूज किया जाता है तो हम उसे कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। अगर क्लास एट्रीब्यूट को यूज नहीं किया जाता तो हम उसे कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग के एग्जांपल्स हैं क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन, एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एग्जांपल है क्लस्टरिंग और यू कैन से ग्रुपिंग। इट शुड बी क्लियर टू यू। सो दिस इज a clear picture of the clustering process. So many data points are there. You can see this in on a 2D plane. We drawn that. So तीन ग्रुप यहाँ बन रहे हैं आपके पास, एक पर्टिकुलर ग्रुप इधर आप देखेंगे और एक पर्टिकुलर यहाँ ग्रुप है, एक यहाँ पर है आपके पास। तो तीन ग्रुप आपके पास यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये ग्रुपिंग ही हमें ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें टारगेट पता नहीं क्या है, डेटा दिया हुआ है, एट्रीब्यूट वैल्यू दी हुई है, हमें पता करना कि ग्रुपिंग क्या होगी। हमारे पास अब क्लस्टरिंग के बहुत सारे तरीके हैं, पार्टीशन बेस्ड, हायरार्किकल डेंसिटी। हम सिंपलेस्ट वाला एक डिस्कस करते हैं, थ्योरी पार्ट बहुत सारा है हमारे पास। तो सबसे ज्यादा जो फेमस एल्गोरिथम है हमारे पास
जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं लोग, वो कहलाता है के मींस क्लस्टरिंग, जो आप लोगों ने नाम भी सुना होगा उसका। इसमें हम क्या करते हैं कि जो डेटा है हमारे पास, मान लीजिए 10 रिकॉर्ड है, उस चीट वाला एग्जाम्पल ही ले लीजिए, और सारा न्यूमेरिकल डेटा है हमारे पास, सारे एट्रीब्यूट, और क्लास एट्रीब्यूट नहीं है हमारे पास। तो उन 10 को दो ग्रुप में बनाना है, 10 रिकॉर्ड को दो ग्रुप में डिवाइड करना है। अब कैसे करेंगे? तो ये एल्गोरिथम कहता है कि के मींस, मतलब आपको के क्लस्टर्स बनाने हैं। तो हो सकता है आप यहाँ कहें कि मुझे 2 क्लस्टर बनाने हैं। सो 2 क्लस्टर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सो 2 क्लस्टर बनाने के लिए आपको के की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, 2। तो होगा क्या इस के मींस में कि आप शुरू में कहेंगे कि कोई भी 2 पॉइंट, अभी जो ये 10 रिकॉर्ड है ना आपके पास, उनमें से कोई 2 आप कहोगे कि ये हमारे सुपीरियर्स हैं, सेंट्रॉइड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों को ग्रुप बनाने हैं 2। अब उन 10 में से आप कहेंगे कि ये 2 लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक जना इधर खड़ा हो जाए, एक जना इधर खड़ा हो जाए, कि 2 जने हैं वोटिंग के लिए, जो जिसके ग्रुप में जाना चाहे जा सकता है। तो लोग इधर उधर होना शुरू होंगे और आपके पास 2 ग्रुप बन जाएंगे। अब ये ऑटोमेटिकली कैसा हो? मशीन के थ्रू, क्योंकि ये मशीन लर्निंग की बात हो रही है ना, यहाँ पे डेटा माइनिंग की बात हो रही है कि मशीन कैसे करे इन सब चीजों को। तो मशीन को करने के लिए आपको बताना है कि कितने ग्रुप बनाने हैं, और बताना पड़ेगा कि इनमें से रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट कौन से हैं। अब बाकी ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? जो जिससे सिमिलर होगा उस ग्रुप में चला जाएगा। और सिमिलर के लिए क्या कर रखा है अपन ने? डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल रखा है, यूक्लिडियन डिस्टेंस, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y। जिसकी डिस्टेंस जिस ऑब्जेक्ट से ज्यादा कम, सबसे कम होगी, वो उस ग्रुप में जाएगा। तो इस एल्गोरिथम में क्या है कि randomly choose k data points to be initial centroids and then repeat for every data point x which is the element of database। सबकी डिस्टेंस कैलकुलेट करिए, और जो नया पॉइंट है x, उसको जो सबसे जिस सेंट्रोइड के नियर आ रहा है उसको, और रिप्रेजेंटेटिव के नियर आ रहा है उसमें उसको असाइन कर दीजिए। और इस प्रोसेस को आप रिपीट करते रहिए काफी लंबे समय तक। सो फाइनली कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया मीट ना हो तब तक आप ऐसा करते रहिए। जब स्टॉपिंग क्राइटेरिया मीट हो जाए देन यू हैव टू स्टॉप इट। सो दिस इज बेसिकली द के मींस प्रोसेस। नाउ अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आपके पास मान लीजिए 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, और उनके एक्स और वाई 2 एट्रीब्यूट्स हैं। सिंप्लिसिटी के लिए 2 ही लिए हैं। ये डायमेंशनलिटी है एक्स वाई, ये कितनी भी लंबी हो सकती है, एक्स वाई जेड के पी एच एम एन ओ, कुछ भी, मतलब 1000 एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के। तो वो तो डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे डेटा डायमेंशनलिटी बढ़ती है, हमारा एल्गोरिथम भी थोड़ा कमजोर होने लगता है। तो इसे कई जगह पे आप पढ़ेंगे कि कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी, डायमेंशनलिटी का शाप, कि जैसे जैसे डायमेंशनलिटी बढ़ेगी आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। सो हमारे एल्गोरिथम में भी इश्यूज आते जाएंगे। सो ए बी सी डी 4 ऑब्जेक्ट, 4 रिकॉर्ड लिए हैं हमने यहाँ पे, और उनकी एट्रीब्यूट वैल्यू दी हुई है। आप देखेंगे मैंने 2 डायमेंशन में इसे प्लॉट भी किया हुआ है। तो 1 1 को प्लॉट किया है, देन 2 1 है, देन 4 5 3 है, एंड देन 5 4 है। आप देखेंगे अगर 2 ग्रुप बनाने तो सीधे सीधे ये 1 1 और 2 1 तो एक ग्रुप में आने चाहिए, और 4 3 एंड 5 4 एक ग्रुप में आने चाहिए। अब ये तो देखने से तो पता लग रहा है, पर ऑटोमेटिकली कैसे हो? ऑटोमेटिकली कैसे होगा? आप देखिए एल्गोरिथम लगाते हैं तो इन्हीं पॉइंट्स में से ए बी सी डी में से, चलो ए और बी को ही मान लेते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो पहला सेंट्रोइड बना दिया C1 और उसमें रख दी वैल्यू 1 1। दूसरा सेंट्रोइड बना दिया 2 1, जो भी हमारा बी पॉइंट है। अब आप हर क्लस्टर से बाकी सारे पॉइंट की डिस्टेंस निकालिए। चूंकि ए पॉइंट खुद ही क्लस्टर C1 का सेंट्रोइड है, तो उसकी खुद से डिस्टेंस निकालेंगे तो 0 निकलेगी। बी से C1 की आप डिस्टेंस निकालोगे तो 1 माइनस 1 स्क्वायर एंड 1 माइनस 0 स्क्वायर, तो वो 1 निकल के आएगी। आप यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब C1 जो सेंट्रोइड है उसकी D से डिस्टेंस कैसे निकलेगी? 1 माइनस D क्या है? 5 एंड 4। 1 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, एंड 1 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, रूट ऑफ दैट इज 5। तो C1 की D से डिस्टेंस 5 है। अब हमने सारे पॉइंट्स की सारे सेंट्रोइड से डिस्टेंस निकाल ली।
इस डिस्टेंस को निकालने पर आपने देखा कि ए पॉइंट की 0 डिस्टेंस है C1 से, तो A1 किस में जाएगा? C1 में जाएगा। B किस में जाएगा? B C2 में जाएगा। C किस में जाएगा? C जाएगा C2 में। और D किस में जाएगा? D भी C2 में जाएगा। तो अभी जो हमारे पास करंट पोजीशन है वो ये कह रही है, ये लाइन जो आप खींची हुई देख रहे हैं पर्पल कलर में, वर्टिकल लाइन, कि स्टार जो है 1.11 अलग है, बाकी सारे तीनों पॉइंट बी सी डी ये अलग बता रहे हैं, और ग्रुप है स्टार आपका, जो एवरेज वैल्यू जो निकल के आ रही है ना। तो अब दोबारा से नए सेंट्रोइड निकालेंगे आप, शुरू में तो वही चूज कर लेते जो थे, बट अब हमको एवरेज करके निकालना है। एवरेज करके निकालना है तो उसके लिए हमें बी सी और डी का एवरेज निकालना है। तो बी और सी और डी का एवरेज कैसे निकलेगा? 1 और 1 में तो ए तो एक अकेला खुद ही है, तो 1 + 1, 1 और 1 तो खुद ही है एक सेंट्रोइड। इधर देखेंगे हम 2 + 4 + 5, 4 + 2 6 + 5 11, और यहाँ 3 + 1 + 4 8, 11/8 एंड 3/8, वो आपका नया सेंट्रोइड निकल के आएगा C2। मतलब जैसे ही आपने सेंट्रोइड निकाले, सेंट्रोइड को बाद पॉइंट्स को रीअसाइन किया, तो जिसमें जितने पॉइंट आ रहे हैं उन सबका एवरेज निकाल लीजिए, वो आपके नए सेंट्रोइड हैं। आप देखेंगे कि पुराने सेंट्रोइड नए सेंट्रोइड सेम नहीं है, तो दोबारा सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। दोबारा से ए बी सी डी पॉइंट्स की सेंट्रोइड 1 और सेंट्रोइड 2 से डिस्टेंस निकालनी है। आप वो डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस निकालने के बाद आप देखेंगे कि अब 2 पॉइंट एक तरफ दिख रहे हैं, 2 पॉइंट एक तरफ, और उनका एवरेज भी आप निकाल लेंगे। एवरेज निकालेंगे तो C1 में आपके पास एवरेज आएगा 1.1 एंड 1, एंड C2 में आपके पास आएगा 4.5 एंड 3.5। अब आप देखेंगे कि फिर से मैं दोबारा कंप्यूटेशन करता हूं, सेंट्रोइड्स के साथ सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालता हूं, फिर से रीअसाइनमेंट करता हूं, तो सेंट्रोइड चेंज नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनकी फाइनल ग्रुपिंग बन गई है। और ग्रुपिंग क्या बनी है? C1 तो रहेंगे AB, C2 में रहेगा CD, जो कि हमारे पास ग्रुपिंग होनी चाहिए थी। तो इस तरीके से हम लेकर चले, कोई भी पॉइंट्स आप रेंडमली चूज कर लीजिए। अगर आपका डेटा सेट लीनियरली सेपरेबल है, लीनियरली सेपरेबल का मतलब ये है, अगर डेटा के बीच में आप कोई ऐसी लाइन या हाइपरप्लेन बना सको कि डेटा को आपस में अलग अलग प्योरली डिवाइड कर सको, तो वो डेटा लीनियरली सेपरेबल कहलाता है। और अगर डेटा को इस तरह से लीनियरली सेपरेबल नहीं कर पाओ, तो आपको क्लस्टरिंग, परफेक्ट क्लस्टरिंग मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहां पर हम देखेंगे कि के मींस क्लस्टरिंग अप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट्स मिले। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा मेथड को। रैंडमली चूज के डेटा पॉइंट्स टू बी इनिशियल सेंट्रोइड्स। एवरी डेटा पॉइंट के लिए आप कंप्यूट करिए हर सेंट्रोइड से डिस्टेंस, जो क्लोजेस्ट है उसको असाइन x कर दीजिए, रिकम्प्यूट द सेंट्रोइड्स एंड अंटिल द स्टॉपिंग क्राइटेरिया इज met. Okay, so this is the typical process of K-means clustering. Now there are several issues. Now we are not interested in that details as of now. फिर क्लस्टरिंग करने का एक और तरीका है हमारे पास, हायरार्किकल। ये तो क्या, पार्टीशन हुआ, डेटा को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें ये कहा जाए कि आप 10 लोग हैं, चलिए आप 3 ग्रुप बना लीजिए, 4 बना लीजिए, या 10 अलग अलग 9 ग्रुप बना लीजिए। तो किन्हीं 2 को आपस में मर्ज होना है, किन्हीं 2 का एक ग्रुप बनेगा, बाकी सब अलग अलग रहेंगे। फिर मैंने कहा 8 का बना लीजिए, फिर मैंने कहा नहीं नहीं चलो 7 का बना लीजिए, फिर मैंने कहा 6 का बना लीजिए, नहीं नहीं चलो आप तो सारे एक ग्रुप में आ जाओ, या 2 ग्रुप बना लीजिए। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी, हमें क्लियर ना हो कि कितने ग्रुप बनाने, क्या नहीं करना, तो उसके लिए हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग को यूज कर लेते हैं, जब हमें के की वैल्यू पता नहीं होती है। ये कैसे करते हैं? इसके लिए आप क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 6 पॉइंट है आपके पास, एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग की हम बात कर रहे हैं। इसमें सारे पॉइंट्स को शुरू में हम कहते हैं कि सब इंडिविजुअल क्लस्टर्स हैं। 6 पॉइंट है तो 6 क्लस्टर है, 6 को 5 करना है, 5 को 4 करना है, 5 के बाद 4 के बाद 3 करना है, 3 के बाद 2 करना है, 2 के बाद 1 करना है, ताकि सारे एक ग्रुप में आ जाए। तो अब इनमें से 2 वो ऐसे कौन से हैं जिनको कि
आपस में मर्ज किया जाए। तो ये जो मैट्रिक्स है आपके पास वो है सिमिलरिटी मैट्रिक्स अभी, कि आपस में कौन कितना सिमिलर है। सो सबसे जो कम सॉरी दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस मैट्रिक यू हैव। सो डिस्टेंसेस आपस में दी हुई है, ए बी से कितना डिस्टेंस है, बी सी से कितना है। तो आप देखेंगे अगर एक डायगोनल वैल्यूज भी आपके पास हो तो आप दूसरी डायगोनल की वैल्यूज अपर रेक्टेंगुलर की अपर ट्रायंगुलर की निकाल सकते हैं अगर आपको लोअर वाली वैल्यू दी होती है, क्योंकि डिस्टेंस मेजर एक सिमेट्रिक मेजर है। अगर आप x की y से डिस्टेंस निकालते हैं या y की x से डिस्टेंस निकालते हैं, दोनों सिचुएशन में आपके पास डिस्टेंस सेम ही आएगी। सो अब आप यहाँ देखेंगे कि भाई a की b से डिस्टेंस है कुछ, तो आप यहाँ देखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दें, क्योंकि a की a से, b की b से, c की c से, और बाकी खुद से डिस्टेंस 0 रहेगी। लेकिन आप ये देखेंगे कि सबसे मिनिमम इसमें है 0.5, जो आपको ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है, वो है f और d की। तो इसका मतलब f और d को आपने आपस में मर्ज करना है। तो ठीक है, f और d को हम आपस में मर्ज कर देते हैं। तो अगली टेबल आपकी ये बनेगी कुछ इस तरीके से। तो इसमें आप देखेंगे कि पहले 6x6 की मैट्रिक्स थी, वो अब 5x5 की मैट्रिक्स बन गई। तो ये 5x5 की मैट्रिक्स कैसे बनी, मतलब एक डायमेंशन उड़ गई है। वो कैसे बनी है, आप यहाँ देखेंगे कि मर्ज करना है एफ एंड डी को। तो अगर ए की एफ से कोई डिस्टेंस है और ए की डी से कोई डिस्टेंस है, तो इनमें से जो मिनिमम वो हम रख लेंगे और बाकी हटा देंगे। तो ए की एफ से डिस्टेंस है 3.2 और ए की डी से है 3.61। तो मिनिमम कितनी है 3.2। तो ए की अगर आप देखेंगे डी और एफ से 3.2 हमने रख ली। इस तरीके से आपको पूरी मैट्रिक्स को अपडेट करते रहना है। अब आप यहां देखेंगे कि डी और एफ तो मर्ज हो गए किसी पर्टिकुलर वैल्यू के साथ, और वैल्यू थी 0.5। अब हम देखेंगे कि किसको मर्ज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे अगेन आपको ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है वो चीज 0.71, ए और बी मर्ज हो रहे हैं इस बार। तो ए और बी को हमने 0.71 के थ्रू मर्ज कर दिया, मैट्रिक्स को अपडेट कर दिया। मैट्रिक्स को अपडेट करने के बाद अब फिर से हम देखेंगे कि हम अब किसको कर सकते हैं वापस से मर्ज। इस बार हमने कर दिया ई और डी और एफ, डी एफ ऑलरेडी था उसके साथ ई को मर्ज कर दिया, मैट्रिक्स को वापस अपडेट कर दिया। इस तरीके से अपडेट करते करते नेक्स्ट अपडेट हो गया सी डी एफ ई के साथ 1.41 वैल्यू के साथ, और लास्ट ले ए और बी अलग थे, डी एफ ई सी अलग थे, और साथ में 2.5 के साथ दोनों मर्ज हो जाते हैं फाइनल। तो आप जो लेफ्ट साइड में जो आपको फिगर दिख रहा है वो कहलाता है डेंड्रोग्राम। हायरार्किकल क्लस्टरिंग में एक डेंड्रोग्राम बनाया जाता है। तो इसमें ये जो डेंड्रोग्राम है, सबसे पहले डी और एफ मर्ज हुए 0.5 वैल्यू के साथ, और नियर 1 वैल्यू के साथ डी एफ ई मर्ज हुए, ए भी कुछ वैल्यू के साथ मर्ज हुए, और जो जो जिस जिस लेवल पे मर्ज हो रहा है वैसे वैसे उस लेवल के हिसाब से वाई डायरेक्शन में आपने उनको प्लॉट कर दिया। अब नंबर ऑफ क्लस्टर्स कैसे पता करें, आपको एक्स एक्सेस के पैरेलल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ वाई। मैंने कहा ओके y की वैल्यू है 1.7, 1.7 जो मिडिल में आपके पास यहां आ रहा है, इसमें अगर आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो जहां जहां ये कट करेगी वो सारे पॉइंट एक ग्रुप में होंगे, मतलब दो जगह कट कर रही है तो दो ग्रुप बनेंगे आपके, और नीचे वाली ग्रुपिंग आपको दी हुई है। अब आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। हेलो योगेश सर, क्या हुआ सर? मीटिंग लेफ्ट हो गया क्या, कुछ ना कुछ दिक्कत है? नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ
नेटवर्क के प्रॉब्लम से अभी थोड़ी देर में सर ज्वाइन करेंगे दोबारा 2 मिनट। सर अनम्यूट कीजिए। हाँ, कितना देर हो गया कट हुए इसको? क्या सर? कितनी देर हो गई थी कट हुए? बस अभी हुआ था 2 सेकंड पहले, ज्यादा लंबा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। आ गया स्क्रीन? हाँ सर, यहीं पे थे, इसी में ठीक है यही चल रहा था। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। सो okay, so basically this व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन इट हैज, ये कहाँ यूज किया जा सकता है एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग? तो मान लीजिए आप पर्टिकुलर जगह पे हैं, पर्टिकुलर एरिया, लेट से हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। अब मेरे को ये पता करना है कि मुझे पता कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे, मान लीजिए कि 50 जो भी हैं। तो उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स की आपस में क्या डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस मैट्रिक्स मैंने बना ली, और उसके बाद मैंने आपस में उनको मर्ज करना शुरू किया। मर्ज करके इस तरह से एक मैट्रिक्स बना ली। तो मैं ये चाहता हूं कि इतने किलोमीटर डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल मैं 250 किलोमीटर डिस्टेंस कहूंगा कि 250 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कौन कौन सी जगह ग्रुपिंग बन रही है, कि जिनकी आपस में डिस्टेंस इससे ज्यादा ट्रेवल नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं उस सेट को लेना चाहूंगा तो कितने सेट बनेंगे? मैं कहूंगा कि 250 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल मैं एक साथ नहीं कर सकता। तो मुझे छोटे छोटे ग्रुप मिल जाएंगे कि आपको इतने ग्रुप में ट्रेवल करनी है, मतलब 4 या 5 जहां से भी इंटरसेक्शन होगा कि इतने डिस्ट्रिक्ट्स का ग्रुप बन रहा है और आपको इसमें ट्रेवल करना है 250 किलोमीटर की रेंज के बिलो। तो जब हमको पता नहीं होता कि कितने क्लस्टर बनाने हैं और हमको सिर्फ एक थ्रेशोल्ड पता हो, उस टाइम पे हम इस टाइप की हायरार्किकल क्लस्टरिंग को यूज करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो एक और एल्गोरिदम है हमारे पास, वो कहलाता है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। तो आप ये देख रहे हैं कई तरह की इमेजेस है। के मींस क्या करता है, एवरेज निकाल के वैल्यूज का स्फेरिकल गोला, एक गोलाकार शेप में क्लस्टर्स बनाता है। बट अगर आपको सांप की शेप का जिगजैग, वाई, त्रिशूल, इस टाइप की कुछ शेप्स अगर क्लस्टर करनी हो तो के मींस वहां फेल हो जाता है। तो आप लास्ट फिगर में देखेंगे एक वाई बना हुआ है, तो उस वाई में अलग ही तरीके का शेप बन रहा है और एक छोटा सा अलग बन रहा है। यहाँ आप पहले फिगर में देखें एक सांप जैसा बन रहा है एस। तो इस तरह के डेंसिटी बेस्ड जो ग्रुपिंग आपकी बन रही है वो कैसे पता कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप ऊपर से एक पिक्चर ले रहे हैं, आपको ये पता करना कि ग्रीन एरिया कितने एरिया में फैला हुआ है। तो उस ग्रीन बेल्ट को पता करने के लिए डेंसिटी के हिसाब से हम क्लस्टरिंग एल्गोरिदम वहां पर लगा सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। इसमें क्या होता है, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम में आपको डेंसली कनेक्टेड पॉइंट्स पता करने होते हैं। जैसे मान लिया आप कोई पॉइंट को प्रोसेस कर रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट, फॉर एग्जांपल जैसे ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास, यहाँ पर आप देखिए ये वाले पॉइंट्स। तो जो पॉइंट बहुत ज्यादा पॉइंट से घिरा हुआ है वो कोर पॉइंट कहलाता है। तो अगर उस पॉइंट्स को लेकर हम कुछ थ्रेशोल्ड डिफाइन करें, दो थ्रेशोल्ड होते हैं यहाँ पर, मिन पॉइंट्स एंड रेडियस। उनके बेस पे अगर कोई पॉइंट कोर कहलाता है तो वो आपस के जो पॉइंट से जुड़ा हुआ है उनको उनको जोड़ के क्लस्टर बना देता है। फिर उन क्लस्टर्स को भी अगर हम कहते हैं कि वो कोर पॉइंट है, डेंसली जुड़े हुए हैं आपस में, तो फिर बाकी सबको अपने नेबर्स को कनेक्ट कर ले। तो एक कनेक्टिविटी जो है, वो कनेक्टिविटी के थ्रू सारे पॉइंट्स एक दूसरे में जुड़ते रहते हैं जब तक कि कोई नया कोर पॉइंट ना बने। तो इस तरह से सारे को पॉइंट जो डेंसली कनेक्टेड है वो एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये फिगर आप देखेंगे, ये एम, पी और ओ, ये सब पोजीशंस मिला के एक ग्रुपिंग बना रहे हैं। तो ये सारे क्लस्टर में रहेंगे और ये जो डेंस रीजन है एस ओ आर के थ्रू जो बन रहा है वो एक ग्रुप आपका के वाला बनेगा। तो ये इस तरह से आपके पास दो ग्रुप बन रहे हैं और जो कहीं पर भी नहीं आएंगे पॉइंट्स वो आपके आउटलायर्स बनेंगे। So यहाँ कुछ definitions है, आई एम स्किपिंग दैट बिकॉज आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू कि डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग होती क्या है और किस तरह से शेप्स वहां से निकल कर आती है। तो आप देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल ये डेटाबेस 1 है हमारा, उसमें इस तरह से ग्रुपिंग होगी आपकी
डेटाबेस 2 को अगर आप देखेंगे तो ये एस उल्टा शेप था, ये कुछ तो ये केमीज नहीं पता कर पाएगा, जो कि हम ड्रॉबैक बता रहे थे पहले। यहाँ पर हमने देखा था कि केमीज तो ये इस तरह के पार्टीशन करेगा जो आपको प्लस प्लस दिख रहे हैं, क्योंकि पार्टीशन बेस्ड है वो क्लस्टरिंग, डेंसिटी बेस्ड नहीं है। और डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग अगर हमें करनी है आर्बिट्रेरी शेप, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जब क्लस्टर की साइज जो है स्फेरिकल और गोलाकार ना हो तो आप लगाएंगे डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। उस केस में आपको आर्बिट्रेरी शेप के क्लस्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको आर्बिट्रेरी शेप के क्लस्टर्स बड़ी आसानी से मिलते जा रहे हैं। तो यहाँ कोई इश्यू नहीं है, आपके पास आर्बिट्रेरी क्लस्टर्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल भी है, आप इसे देख लीजिएगा स्लाइड्स में। अब दिक्कत हमारे पास ये आती है कि क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को चूज करें, कैसे करें। तो हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है, तो हमें क्या कई बार इन्हें रन करना पड़ता है। अब आपके लिए हम जब इस प्रेजेंटेशन के बाद देखेंगे कि एक डेमोन्स्ट्रेशन टूल भी मैं आपको बताऊंगा, उस टूल को यूज करेंगे तो आप ये सारे एल्गोरिथम्स को डायरेक्टली रन कर पाएंगे। मैंने आपको आइडिया इसलिए दिया है कि आपको पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम काम कैसे करता है, बाकी उसको लगाना, इनपुट देना और आउटपुट निकालना बड़ा आसान है। सो जब तक आप एल्गोरिथम की इनसाइट्स पे नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होगा आपको एल्गोरिथम का, तो आप उसे यूज करना मुश्किल है थोड़ा सा। अगर आप उसको थोड़ा सा उसकी बेसिक फंक्शनलिटी फंडामेंटल्स पता हो गई तो बड़ी आसानी से यूज कर पाएंगे। सो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई परफेक्ट एल्गोरिथम है, आपको हिट एंड ट्रायल तो करना ही पड़ेगा वहां पे, जो जिस पे बेस्ट लगे आप उसे वहां लगाइए। पर जो की रूल्स है हमारे पास वो ये थे कि के मीन्स के की वैल्यू अगर पता है और स्फेरिकल क्लस्टर्स आपको निकालने हैं, देन बड़ी आसानी से आप वहां पे के मीन्स लगा सकते हैं। के की वैल्यू पता नहीं है तो आप हायरार्किकल क्लस्टरिंग वहां लगाइए, और आर्बिट्रेरी शेप की क्लस्टर्स निकालने तो वहां पे डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम लगाइए। अब दो चीजें हमने मोटी मोटी देखी, क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन। तो क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन में एक टारगेट एट्रीब्यूट होना चाहिए आपके पास, क्लास एट्रीब्यूट होना चाहिए, इसलिए उसे सुपरवाइज लर्निंग मेथड कहते हैं, क्योंकि वो क्लास एट्रीब्यूट को लर्निंग प्रोसेस में यूज करता है। अगर आपके पास क्लास एट्रीब्यूट नहीं है, सिर्फ डेटा वैल्यूज हैं, तो और आप प्रोसेसिंग में यूज नहीं कर रहे हो उसे, तो वो आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, और उसका एग्जांपल होता है क्लस्टरिंग। और ये टेक्निकल डेफिनेशन दोनों आपको पता होनी चाहिए। सिंपल डेफिनेशन है, जहां सुपरविजन हो वो सुपरवाइज लर्निंग होती है, जहां सुपरवाइजन नहीं हो, कोई टीचर अवेलेबल नहीं हो सिखाने वाला, वो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो आप ये कहेंगे कि क्लास एट्रीब्यूट को ट्रेनिंग और लर्निंग प्रोसेस या मॉडल बनाते वक्त यूज किया जाएगा तो वो सुपरवाइज लर्निंग है, उसको अगर यूज नहीं किया जाएगा तो वो अनसुपरवाइज लर्निंग है, जैसे कि क्लस्टरिंग। ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन में तो एक क्लास बताते हैं हम, जो मॉडल बना हुआ है उससे अननोन डेटा का। प्रिडिक्शन में एक न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं, तो इधर कैटेगरी से रिलेटेड है क्लासिफिकेशन और वो न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड है प्रिडिक्शन। फाइन, now let's come to the another thing which is there in this data mining methodologies is association rule analysis। कि दो जो आइटम्स हैं, ये जो है ये पहले सबसे पहले प्रपोज हुआ था मार्केट बास्केट एनालिसिस के लिए। सो मार्केट डेटा को एनालाइज करने के लिए इसका प्रपोज किया गया था बेसिकली, तो वहां से ये निकल के आया था। देन इसका एग्जांपल हम देखें तो ये ट्रांजेक्शनल फॉर्मेट में रहता है हमारा डेटा। एक्चुअली ट्रांजेक्शन नहीं, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, कह रहे हैं कि कोई भी मार्केट गए तो हम कुछ चीजें खरीदेंगे तो उनकी लिस्ट। तो जैसे ट्रांजेक्शन आईडी 1, किसी ने खरीदा ब्रेड कोक और मिल्क, किसी ने खरीदा बियर एंड ब्रेड, किसी ने खरीदा बियर कोक डायपर मिल्क, फोर्थ बियर ब्रेड डायपर मिल्क कोक डायपर मिल्क। तो यहाँ पे दो टर्म्स होती हैं, सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस, कि कौन कौन से आइटम फ्रीक्वेंट है। मतलब जो भाई 5 ट्रांजेक्शन है उनमें से 3 में अगर कोई आ रहा है, मतलब 60% टाइम आ रहा है, तो उसको हम फ्रीक्वेंट कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो हम वो डिफाइन करेंगे पहले। मैंने कहा ठीक है 80% टाइम अगर कोई चीज ज्यादा आ रही है हर ट्रांजेक्शन में, 80% ट्रांजेक्शन में आ रही तो वो बहुत फ्रीक्वेंट है। और उन फ्रीक्वेंट चीजों को यूज करके मुझे रूल बनाने हैं, इंटरेस्टिंग रूल, जैसे कि मिल्क इंप्लाइज कोक। वो कैसे निकला कि जब जब मिल्क खरीदा गया तो हमेशा कोक भी उसके साथ खरीदी गई। तो आप देखेंगे कि मिल्क एंड कोक सारे
ट्रांजेक्शन्स में है, इसका मतलब ये है कि ये फुल्ली कॉन्फिडेंस, एक तो सपोर्ट वैल्यू होता है कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में पर्टिकुलर आइटम आ रहा है, और एक होता है कॉन्फिडेंस की कितने कॉन्फिडेंस से आप कह सकते हो कि कौन सा आइटम किसके साथ आ रहा है। दो या दो से ज्यादा आइटम्स का कलेक्शन कहलाता है आइटम सेट। लाइक ये ब्रेड कोक एंड मिल्क में 3 है आइटम, तो इसे कहते हैं 3 आइटम सेट। बियर कोक डाइपर मिल्क रिकॉर्ड नंबर 3, इसमें 4 आइटम है तो 4 आइटम सेट, मतलब 4 साइज का आइटम सेट। 1 आइटम सेट मतलब एक आइटम रहेगा, 2 आइटम सेट, 2 आइटम रहेंगे, 3 आइटम सेट, 3 रहेंगे, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमें रूल निकालने पड़ते हैं। एक और रूल लिखा हुआ है, डाइपर कोमा मिल्क इंप्लाइज बियर, मतलब जब जब डाइपर और मिल्क लोगों ने खरीदा तो उसके साथ साथ बियर भी खरीदी ज्यादातर टाइम। तो ये कॉन्फिडेंस भी, अगर आप 100% कॉन्फिडेंस हो, इसका मतलब जब भी किसी ने एक पर्टिकुलर आइटम सेट ए इंप्लाइज बी, मतलब ए खरीदा तो बी हमेशा वो उसे लेता है। एक आइटम हो सकता है और बी भी एक आइटम हो सकता है, और दोनों आइटम सेट भी हो सकते हैं। मतलब ए इंप्लाइज बी, ए हो रहा है तो बी हमेशा हो रहा है। अगर आप 100% कॉन्फिडेंस आपकी वैल्यू उसको मिल रही है, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस को 100% नहीं रखना पड़ता हमेशा। आपको कभी जैसे सपोर्ट 80% रख लिया, कॉन्फिडेंस आपने 60%, तो उससे आपको रूल बनाने पड़ते हैं। अब ये इस टाइप के रूल बनेंगे, मिल्क इंप्लाइज कोक, डाइपर मिल्क इंप्लाइज बियर, इसका मतलब ये आइटम साथ में खरीदे जा रहे हैं, और यही हमारा एनालिसिस है। इसका यूज क्या है? अब इसका यूज ये है कि आपको जो मैंने एग्जांपल शुरू में दिया था कि टारगेट मार्केटिंग करी जा सकती है, तो इससे टारगेट मार्केटिंग भी करी जा सकती है। आप जो अपनी शॉप, जो मार्केट है या मॉल है, उसकी डिजाइन, कैटलॉग डिजाइन भी आप कर सकते हो कि ऐसे आइटम्स को आप साथ में रख सकते हो जो कि फ्रीक्वेंटली बिक रहे हैं, साथ साथ बिक रहे हैं। या आप क्रॉस मार्केटिंग भी कर सकते हो कि आप एक प्रोडक्ट खरीदिए, दूसरा प्रोडक्ट आपको डिस्काउंटेड रेट पे दे दिया जाएगा, तो आप इन एक्चुअली उसको थोड़ा सा डिस्काउंट देकर उस प्रोडक्ट को आप ज्यादा बेच रहे हो, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हो। और डेटा माइनिंग का पर्पज ही हमारा ये है कि डेटा को इस तरह से एनालाइज करें, जो भी हमने पहले सबसे पहले बात करी थी, बिजनेस कंपिटेंस, कि जो भी ये कंपिटेंस हमारे पास आ रही है उसके थ्रू हम उससे ओवरकम करते हुए प्रोडक्ट को बढ़ाएं और हमारा रेवेन्यू भी ज्यादा बढ़े कंपनी का। और अमेजोन और फ्लिपकार्ट में तो यही लगा रहता है, आप देखेंगे हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज आती रहती, कोई कितना डिस्काउंट देता, कोई कितना डिस्काउंट देता। तो यही एक बिजनेस को बचाए रखने की कई सारी चीजें हैं। तो ये सारे आप एसोसिएशन रूल एनालिसिस, एंड देन इसके अलावा अगर आप बात करेंगे स्पेशलाइज सिस्टम्स की, तो जैसे रिकमेंडर सिस्टम्स जो आपके सर एचओडी सर भी बता रहे थे कि आप रिकमेंडर सिस्टम्स आ जाते हैं, आप कुछ सर्च करते हैं और अगली बार आप सर्च करेंगे तो आपको अपने आप रिकमेंडेशंस आने लग जाती हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है बैकग्राउंड में। बिग डेटा, जो भी हमारा डेटा जितना भी जनरेट हो रहा है, उनका बैकग्राउंड में एनालिसिस हो रहा है, जिसकी एनालिसिस होकर आपको वापस आपको मिल रहा है रिजल्ट्स। इसलिए रेवेन्यू जनरेशन के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, किसी और ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा कोई ना कोई ले रहा है। सोशल पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो सोशल प्लेसेस में इतनी जगह है हमारे पास, सोशल प्लेटफॉर्म्स की, उस डेटा को एनालाइज करके अगर हम उसे सही जगह लगाएं तो हमें भी बहुत फायदा हो सकता है और जनरल पब्लिक को भी बहुत फायदा हो सकता है। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी चीजें इसमें देखनी पड़ेंगी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट डेटा माइनिंग एंड अदर डोमेन्स, अभी तक तो हम सिर्फ डेटा माइनिंग की बात कर रहे थे, और डेटा माइनिंग में हमने 3 मोटी मोटी चीजों की बात करी। अब हम कहें कि स्टेटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, विजुअलाइजेशन, एल्गोरिथम्स, एप्लीकेशंस, डेटा वेयरहाउस, ये सब आपस में कैसे रिलेटेड है? ये सब आपस में रिलेटेड है। पर ऐसी कौन सी चीज है जो डेटा माइनिंग को नहीं चाहिए? उसे डेटाबेस भी चाहिए, उसको स्टेटिस्टिक्स भी लगानी पड़ेगी, मशीन लर्निंग भी, पैटर्न रिकॉग्निशन भी, विजुअलाइजेशन भी, हर चीज आपको इंटर रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल भी है, और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग तो हमें चाहिए। तो डेटा माइनिंग सारे डोमेन से इन सबसे रिलेटेड है। अब अगर हम इश्यूज की बात करें तो इश्यूज क्या क्या है डेटा माइनिंग में? सो मेजरली ये 3 तरीके से हो सकता है, माइनिंग मेथडोलॉजी में, यूजर इंटरेक्शन में, और फाइनली सोशल इम्पैक्ट्स के ऊपर। तो आप अपनी तरीके से कि माइनिंग मेथडोलॉजी में कि किस तरीके का डेटा है, वेबसाइट्स का है, स्ट्रीमिंग है, बायो का है, बायोलॉजी डोमेन का है, आप स्केलेबल एल्गोरिथम बना पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, पैटर्न्स का एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, आप पैरेलल कर पा रहे हो क्या? बहुत सारा डेटा है पैरेलल, आजकल पैरेलल कंप्यूटिंग भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बिकॉज कम समय में हम हमारा थ्रूपुट इंक्रीज कर सकते हैं ज़्यादा प्रोसेसिंग प्रोसेसर्स लगाकर।
जीपीयूज का नाम आपने सुना ही होगा। यूजर इंटरेक्शन की बात करें हम तो डेटा माइनिंग, क्यूरी लैंग्वेजेस एंड एडॉक माइनिंग के मतलब ये डिपेंडेंट है कि यूजर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। एक्सप्रेशन और विजुअलाइजेशन, अगेन जो डेटा माइनिंग के रिजल्ट्स उनका विजुअलाइजेशन आपको कैसे करना है। इंटरेक्टिव माइनिंग ऑफ नॉलेज एंड मल्टीपल लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। सो इश्यूज भी हमारे पास बहुत हैं, चाहे इनकॉर्पोरेशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे सोशल इम्पैक्ट्स हो, सभी जगह हमारे पास इश्यूज भी हैं। बट एज वेल एज डेटा माइनिंग प्रोवाइड्स हम सब effective automatic tools for what we should say data analysis। अभी हम टेक्स्ट की अगर बात करें, अभी तो न्यूमेरिकल कैटेगरिकल की बात करें, जो वर्ल्ड वाइड वेब पे जो पीडीएफ है, जो सारा काम हो रहा है गूगल के थ्रू, वो सारा टेक्स्ट माइनिंग पे हो रहा है, चाहे वो वेब पेजेस हो चाहे कुछ और हो, सभी सभी इस तरीके से चीजें कर रहे हैं। सो नाउ फाइनली आई एम गोइंग टू एंड दिस प्रेजेंटेशन with few things, and then after it we will have a demonstration session. Before ending it, let me give you the major outlines of the presentation. That data is growing rapidly, बहुत ज्यादा डेटा है हमारे पास, इतना समय नहीं रहता हमारे पास कि उसको लेकर बैठे रहे, एनालाइज करना है और उसको यूज करना है। मेजर जो टेक्निक्स है हमारे पास, क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन रूल्स हैं। इसको करने के लिए डेटा चूंकि न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल होता है इन नेचर, 2D डेटा मैंने आपको दिखाया। क्लास एट्रीब्यूट अगर आप यूज कर रहे हैं प्रोसेसिंग में तो वो आपका सुपरवाइज लर्निंग प्रोसेस है। न्यूमेरिकल डेटा प्रिडिक्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो वो आप प्रिडिक्शन हो गया। किसी की कैटेगरी बता रहे हो, यस नो ट्रू फॉल्स, वो आपका क्लासिफिकेशन हो गया। डेटा को बिना क्लास एट्रीब्यूट को यूज करे ग्रुप कर रहे हो तो वो आपका क्लस्टरिंग हो गया। जो वैल्यूज है उनमें आप रिलेशन निकाल रहे हो तो वो एसोसिएशन रूल एनालिसिस हो गया। फाइन। So this is all about what we discussed in today's session. Now we will have a demonstration session. Before it, let me take some questions from you. So in chat box, let me check. Bhavani Shankar, on what basis of what specific types of regression, classification and regression is selected clustering? Okay. So your question is saying that I'm seeing that there is not any hard rule to choose any technique. Okay, so as I'm saying, classification basically deals with classifying certain categorical categories. So you apply any algorithm that suits to your data. But in case of regression, it is basically used for predicting a continuous value. So either you use to predict a temperature value, maybe a future value of a stock price. Okay, so at these places you can use regression. And the places where you do not have idea about class attribute, जो कि हमारे पास मस्ट है कि सुपरविजन के लिए, अगर अनसुपरवाइज लर्निंग मतलब क्लस्टरिंग यूज करना है तो हमारे पास वो क्लास एट्रीब्यूट नहीं है, तो सिंपली डेटा के ऊपर आप एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्लस्टरिंग लगा दीजिए, चाहे के मींस लगाइए चाहे कोई और क्लस्टरिंग लगाइए, डिस्टेंस मेजर आपके पास है ही, and then you will get the final clustering with you. Fine. Any other questions in the chat session? Anurag? No, sir. Till now, no. Okay, so now let me give you about demonstration. So अभी तक जो भी आपने हमने डिस्कस किया इसमें प्रेजेंटेशन में, उनके लिए हमारे पास एक टूल है, ओपन सोर्स फ्रीली अवेलेबल है, उसका नाम है वेका, वाईकाटो एनवायरनमेंट फॉर नॉलेज एनालिसिस। एक यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, WEKA। आपको दिख रहा है वेका, अनुराग? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप वेका डाउनलोड कर लीजिए सब लोग। एंड करना क्या होता है इसमें, ये डेटा इनपुट लेता है, देन आपको रिजल्ट दिखा देता है। ये ARFF फॉर्मेट में फाइल को एज ए इनपुट लेता है, लेकिन आप CSV फॉर्मेट आपको एक्सेल में आता होगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्सेल से, तो मैं एक्सेल ओपन करता हूं आपके लिए। फॉर एग्जांपल ये एक्सेल है फाइल, कोई भी डेटा आपने उसमें डाला, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाला XYZ और क्लास यहाँ डाल दी, तो उसको मैंने सेव एज किया, देन उस फाइल को कहीं पे मैं सेव करके CSV फॉर्मेट में सेव कर सकता हूँ। फाइन। सो यहाँ पे आप CSV में किसी भी फाइल को कहीं पे भी सेव कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू, अगर वो XLS फाइल है तो भी।
उसको सेव करने के बाद व्हाट यू कैन डू इज, अगर CSV है, ये तो ARFF एक्सेस करता है पर CSV भी कर लेता है, पर ARFF को कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप टूल्स में जाइए, यहाँ पे ARFF व्यूअर है, आप इस पे क्लिक करेंगे, देन एक विंडो खुलेगा, वहां पे आप जाइए, फाइल पे ओपन करिए। अब जो डेटा फाइल मैंने कहीं पे रखी हुई है वो मैं यूज करूंगा, देन दैट इज देयर इन C ड्राइव एंड वीका एग्जाम्पल। यहाँ तो ARFF बनी हुई है क्योंकि मैंने उसे डिलीट नहीं किया था। CSV ओपन करूंगा मैं सबसे पहले। अब ये CSV हुई ओपन, तो CSV से क्या है, ARFF में बनाना होता है, तो अब सिंपल है, इसको ओपन कर लिया और सेव कर दो आप ARFF में। तो इसका नाम हमने लिख दिया डेमो, और ARFF फॉर्मेट में, ARFF का फुल फॉर्म होता है एट्रीब्यूट रिलेशन फाइल फॉर्मेट। इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसे देखूंगा कहां पर है, ये डेमो के नाम से सेव हुआ, इसको ओपन करूंगा तो ये कैसा दिखेगा मुझे, वर्डपैड में भी अगर ओपन करूंगा तो ये ARFF का फॉर्मेट ये होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो फाइल का नाम होता है, एट द रिलेशन, फाइल का नाम क्या रिलेशन है, एंड एक्चुअल जो नाम था, और एट्रीब्यूट्स का नाम होता है XYZ, 3 एट्रीब्यूट है, तीनों न्यूमेरिक थे, और जो क्लास एट्रीब्यूट है उसमें V और C पॉसिबल वैल्यूज हैं, और डेटा आपका ये है। इस तरह के फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर लेता है और इसे कहते हैं हम ARFF फॉर्मेट। ठीक है, तो आपके पास अगर एक्सेल में भी डेटा है तो आप अपना डेटा इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम वापस इसमें आ जाते हैं। ओके, सो वी अगेन केम टू विका। नाउ हमको एक्सप्लोरर पे क्लिक करना पड़ेगा हमारे एक्सपेरिमेंट्स को चलाने के लिए, जो भी हम रन करना चाहते हैं, तो ये वाली विंडो आपके पास खुलेगी। तो जो ये जो वेका है, इसी के अंदर UCI मशीन लर्निंग रेपोजिटरी है, आप नोट करेंगे UCI मशीन लर्निंग रेपोजिटरी। तो UCI मशीन लर्निंग जो रेपोजिटरी है उसमें फ्री डेटा सेट्स हैं बहुत सारे, लगभग 100 से भी ज्यादा। तो आप क्लासिफिकेशन के लिए, क्लस्टरिंग के लिए या एसोसिएशन रूल्स के लिए उन डेटा सेट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम इस फाइल, कोई सी भी फाइल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं ARFF। तो कुछ सैंपल डेटा फाइल्स हमारे पास क्या है, इसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उसमें भी पड़ा रहता है। तो हम प्रोग्राम फाइल्स में जाकर वेका, ये लेटेस्ट वर्जन है इसका, स्टेबल, ओपन फाइल, डाटा। तो ये जो कुछ स्टैंडर्ड डेटा सेट्स हैं आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, तो इन डेटा सेट्स का आप यूज कर या, तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं, एक बहुत ही फेमस डेटा सेट्स है आइरिस। ओके, तो इस आइरिस डाटा को लोड करते हैं हम इसमें। तो इसमें हमें दिखाया गया है कि 4 एट्रीब्यूट हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, एंड एक क्लास एट्रीब्यूट है। क्लास एट्रीब्यूट में 3 क्लासेस हैं, आइरिस सेटोसा, वर्सिकलर, वर्जिनिका। तो 3 एट्रीब्यूट है, तीनों न्यूमेरिकल है, और जो क्लास एट्रीब्यूट हमारा कैटेगरिकल है। हर किसी में टोटल 150 रिकॉर्ड है, इंस्टेंसेस आपको देखेंगे 150 रिकॉर्ड है। सम ऑफ वेट्स एट्रीब्यूट 5 है टोटल इंक्लूडिंग क्लास एट्रीब्यूट, और सेपल लेंथ का मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन सब आपको दिया हुआ है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका वो भी दिया हुआ है। विजुलाइज सबको करना है तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, हम पूरा डेटा हम विजुलाइज कर सकते हैं इस तरीके से। सो विजुलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा टूल है ये। अब आपने जो डेटा ओपन तो कर लिया, अब इसका करें क्या। अब इसके लिए आप देखिए, क्लासीफाई, क्लस्टर एंड एसोसिएट, 3 जो मेजर हमने चीजें डिस्कस करी, उन चीजों की टैब आपके लिए बनी हुई है यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल हम क्लासीफाई पे क्लिक करते हैं, और ये जो चूज आपका ऑप्शन है, यहाँ से आप एल्गोरिदम को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम लेना है। फॉर एग्जांपल हमें डिसीजन ट्री लेना है, तो ट्री पे आ जाइए। तो बहुत सारे डिसीजन ट्री, तो एक डिसीजन ट्री पर्टिकुलर हमने ले लिया J48, और जो वैलिडेशन मेथड है ट्रेनिंग सेट से इनसे, वो है 10 फोल्ड। 10 फोल्ड क्रॉस का मतलब होता है जैसे 100 डेटा रिकॉर्ड है अगर आपके पास, तो किन्हीं 10 को आप टेस्टिंग के लिए रख लो, बाकी 9 ट्रेनिंग के लिए रखो। ट्रेनिंग के बाद जो मॉडल बन गया, जो बचे हुए 10 रिकॉर्ड जिनको टेस्ट करना है, कि उन पे चेक करो कि सही रिजल्ट मिल रहे हैं नहीं मुझे जो आने चाहिए। तो 10 में से 7 में सही आया तो 70% एक्यूरेसी हो गई उसकी। पर इसमें क्या होता है, फोल्ड क्रॉस में
हम चेंज करते जाते हैं। पहले 90 को कर लिया, 10 को अलग रख लिया, फिर जो 10 सिलेक्ट किया तो उनको वापस ट्रेनिंग में दिया, और उनमें से किन्हीं 10 को अलग कर लिया। तो हर 10 को टेस्टिंग के लिए यूज करना है कभी ना कभी। तो एवरेज निकाल लेंगे सबकी एक्यूरेसी का, तो हमें एवरेज मिल जाएगी। अब हमने J48 लगाया है, इसमें अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, तो इसका पूरा पैरामीटर्स आपके पास आ जाएगी। आप जो भी वैल्यू चेंज करना चाहें इसमें चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और आप स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका सारा रिजल्ट आ चुका है। तो इसमें आपके पास जो टोटल क्लासिफिकेशन हुआ, ए का ए से 49 47, तो कुछ मिस क्लासिफिकेशन भी हो रहा है थोड़ा बहुत, तो आपकी जो एरर वैल्यू है वो आपको दिखा रहा है। तो करेक्ट क्लासिफिकेशन हो गया 144 और 96% एक्यूरेसी है आपकी, एंड 4 इनकरेक्टली क्लासीफाई हो रहे हैं। अब इसका आपकी ट्री देखना है आपको, जैसे हमने डिसीजन ट्री बता रहे, तो विजुअलाइज ट्री पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे राइट क्लिक करके, तो आपको ट्री भी दिख जाएगा। तो ये बता रहा है कि अगर पेटल विड्थ इतनी हो तो ये क्लास है, पेटल विड्थ ज्यादा 6 से ज्यादा हो तो पेटल विड्थ फिर इतनी हो, फिर पेटल लेंथ, तो लास्ट में तो क्लास एट्रीब्यूट है लीफ में। तो इस तरह से आपका कुछ ट्री निकल के आ जाएगा। तो आपने जो एल्गोरिथम वहां देखा हुआ, यहाँ सिंपली आप डेटा इनपुट दीजिए और आप आउटपुट यहाँ पे निकाल लीजिए, ठीक है। देन बी अप्लाई द सेम थिंग ऑन क्लस्टरिंग। सो क्लस्टरिंग के लिए आप अप्लाई करेंगे सेम, क्लस्टरिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास चूज करेंगे एल्गोरिथम, सिंपल के मींस पे क्लिक करेंगे एंड यू विल गेट क्लस्टर्स। तो एक ग्रुप में 67 आया, एक 33, दो ही क्यों बने, क्योंकि यहाँ पे हम सेटिंग्स में देखेंगे कि मिनी नंबर ऑफ क्लस्टर्स शायद 2 हैं। अगर हम वैल्यू चेंज कर दें 3 कर दें, तो लेट्स सी व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। 3 ग्रुप बन गए, देखिए 50-50 परफेक्ट ग्रुपिंग हो गई पूरी की पूरी। तो जो आपके क्लासिफिकेशन से हो रहा था, अब यहाँ लेकिन इन्होंने क्लास एट्रीब्यूट को यूज नहीं किया है यहाँ पे कैटेगरिकल को, तो उसके बजाय इन्होंने इन्हीं को यूज किया और उसके बेस पे इन्होंने क्लस्टरिंग कर दी, तो इनका काम बन गया। तो इसी तरह से आप एसोसिएशन रूल भी इसमें लगा सकते हैं। तो इसके एसोसिएशन के लिए आपको डेटा चूज दूसरा करना पड़ेगा, थोड़ा पूरा कैटेगरिकल हो, तो इसके लिए हमें दोबारा से दूसरी फाइल ओपन करनी पड़ेगी। लेट्स से इफ वी अप्लाई ओपन फाइल, वोट एक डेटा है, उसमें आपका थोड़ा कैटेगरिकल डेटा ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर देखें बहुत सारे कैटेगरिकल डेटा है हमारे पास। सो देन वी अप्लाई एसोसिएशन रूल, अप्लाई जो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है। तो आप यहाँ देखेंगे बेस्ट रूल्स फाइंड, तो टॉप 10 रूल्स इन्होंने दे दिए, कुछ कॉन्फिडेंस वैल्यूज भी बताई है कि दिस adoption of the budget of resolution equals to y, physician fee if region equals to n, then class equals to democrat। तो इस तरीके से ये एसोसिएटिव क्लासिफिकेशन इन्होंने कर दिया है। फाइन। सो अदर देन दैट वी हैव विजुअलाइजेशन टूल्स एंड ऑल दैट। सो मेजरली आपको क्या करना है, ARFF फॉर्मेट में फाइल को कन्वर्ट करना है, फाइल को ओपन करना है। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, जो भी एल्गोरिथम आपको लगाना है आराम से लगाइए। क्लस्टरिंग एल्गोरिथम आपको चूज करना है, जो भी यहाँ से लगाइए। आप वो एसोसिएशन रूल में जो भी लगाना है यहाँ पे यहाँ लगा दीजिए। फाइन। और इस तरीके से आपके रिजल्ट्स इनपुट दीजिए एंड गेट द रिजल्ट्स। फाइन। and it can be easily downloaded freely, open source, available on the website of Weka. Fine. Thank you. Thank you, sir, for your great material. Anyone having any question regarding the session, or then we will wait for 5 minutes. You can directly ask or type in the chat box. My Anyone email ID any is kind also of there, question. ymina.csc@mnit.ac.in. You will get the slides and you can email me if you have any questions. Even those in discussion we are not able to make that. Divya, can we The train one question. our own data there too? Yes, that is. See, that data sets I told you that these are the data values that are already given in Explorer. You can select your file. For example, the same file created by you, you can easily convert it into ARFF, and you can just open the file, whatever the location you would like to open, and then you can just play with it. No issue in that. You can open your own files, no issue. Anyone?
हाँ बोलेंगे ना वो तो। Okay, I hope that no further query is there. Okay, one Sir, more one question more is there, question is Anurag. there. How execution of Yes, sir. such large data sets is taken care in terms of space and time? Time. Yeah, Bhavani Shankar. Okay. So the question is related to Veka or in general? Can you specify, Bhavani? Bhavani, can you turn on your mic In general. speaker? Okay. So space, previously it was a concern. Okay. Previously we have less storage space, but as with the high performance computing devices and increasing the storage space we have, nowadays space is no more a concern. But again, time is again a concern. For example, association rule mining. In association rule mining, we need to generate frequent item sets, and then using that we need to find out rules. So researchers are doing that things. Okay, they are developing new algorithms day by day. If we talk about classification, that is the simplest one, decision tree. But nowadays we have more sophisticated or efficient algorithms like support vector machines. And again, in order to apply things on big data, especially so much of data, we are using deep neural networks. Have you heard the term deep neural networks? So neural networks, they are extensive, like on GPUs we are applying on that convolution neural networks, and like deep neural networks we are applying huge amount of data on that, and we are getting the results. So in order to speed it up, we are using GPUs for that purpose, because on a single processor it is very difficult to run that kind of simulations. If I am using this laptop and I would like to simulate that kind of scientific calculations, so they have to use specific hardware for that. So in order to take care of these space and then these timing constraints, one thing is that specialized algorithms are going to be developed by researchers, and other thing is that specialized hardware is also going to be used in order to process that data. Uh, which one for what you are talking about? We implement these similar smaller projects. What kind of projects? And which one you are talking about? Deep neural networks, GPUs, what? Okay. Are you talking about in general data mining techniques? Bhavani, Yes. Okay. So in general, you like directly. your BTech projects or like some specific social projects, what you can do is you can take data first. The very first thing is the pre-processing of the data. That is very much important. And that how you pre-process it. You get the data, understand its features, then try to reduce the dimensionality in order to save the time, because each and every attribute is not going to participate in the learning process most of the time. So अगर डेटा बहुत बड़ा है, योर डायमेंशनलिटी बहुत ज्यादा है, तो उस डायमेंशनलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं हम टाइम को कम करने के लिए. और जो आपके फॉर एग्जांपल फेस रिकग्निशन सिस्टम, अगर हम बात करें, जो इमेज प्रोसेसिंग की बात करें, तो फेस रिकग्निशन सिस्टम में आपके पास बहुत बड़ा डेटा होना चाहिए कि ये किसका फेस है. तो आप सबसे पहले उनकी फीचर्स को ट्रेन करेंगे. उन फीचर्स को या तो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू या और भी कुछ फीचर कैप्चरिंग मेथोडोलॉजी, एसोसिएटिव मेमोरीज या होपफील्ड नेटवर्क्स के थ्रू आप उसे ट्रेन करेंगे. बहुत सारे एल्गोरिदम्स है हमारे पास, स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं कि वही यूज करना है. उन एल्गोरिदम को यूज करेंगे, या तो वेका का यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो मैटलैब भी यूज कर सकते हैं. मैटलैब में भी ये बहुत सारे एल्गोरिदम इमेज प्रोसेसिंग के लिए तो इम्प्लीमेंटेड ही हैं ही. और अगर खुद से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कोडिंग को, खुद से कोड लिखना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं. वो सब करने के बाद आप सिंपली एक नया इमेज दीजिए. फॉर एग्जांपल आप खुद की इमेजेस 50 इमेज डाल दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स की, जैसे 10 फ्रेंड्स की इमेजेस ली, और अब आप सिस्टम के सामने खड़े हो जाइए कि वो आपको रिकॉग्नाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा. आप खुद के घर में भी जैसे कि चेक सिक्योरिटी कैमरा आईओटी डिवाइसेस के साथ कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि घर में ऑटोमेटिकली आपका दरवाजा खुल जाए कुछ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, बट उसके पहले आप ऑथेंटिकेटेड हो कि आप यही पर्सन इस घर के आदमी हो क्या. जैसे कि मोबाइल फोन को आप खोलते हो तो आपकी इमेज आती है तभी तो खुलता है, या आप पासवर्ड डालते हैं, उसी तरीके से आप घर पे कैमरा लगा दीजिए और कुछ इस तरह से डिवाइस जनरेट करिए कि
एक्सेस तभी ग्रांटेड हो जब आपका उसमें आपकी जो डेटाबेस में आपकी इमेज मैच हो जाए। तो ये सिंपल सिंपल रिकॉग्निशन सिस्टम्स आप छोटे छोटे मैटलैब में आप खुद भी बना सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा आपको। One more question is Yeah. One more question is Where, sir? Yogesh sir, Okay. one more As it question was is showing clustering and classification on its own, if you want to do as it was showing clustering and classification on its own, but if you want to do a specific clustering application as density based on negative, do we need to program in our server? It can already there. So for this question, you can see that if you want to go for some specific one, and let's say, see, which one? Quick data set. You see, program files. Quick data iris. You are talking about classification and clustering. So here hierarchical clustering is also available, but in case like one you told density based, let us check density based is still they added or not. Density based is not available. Okay, yeah, it is there. Make density based cluster, it is also there. Okay, so all kind of clustering techniques are which are standard are available in Weka, but still if new technique is developed, they continuously release their software by updating it. That university, Weka is not a new software, it is very old. Whenever some new technique or a technique which is very famous and it is requires to be added into the repository, they release a new version of it. So no issue in that, but still if you do not have anything specific in Weka, you have to implement it by your own, because you know the algorithms are written at all the places, you just implement it and play with it. That is a better option if you can program. If you are not able to program and you want to directly use it, then you can use MATLAB or Weka kind of tools. Thank you, sir, for your kind, valuable time and valuable. Okay, Anurag, thank you. Presentation. Thank you, sir. Okay, everyone can left the meeting. Is tomorrow there will be on 11 a.m. The topic will be it will start from the VLSI. What is VLSI? What is computer architecture? How the computer works? How can we build some kind of computing application or computing hardware? uh, and what are the requirements will be there, that will be covered in the next topic of tomorrow. It will be beneficial from you understand the microprocessor, how the computer is built, how what are the instruction is stored, how can we generate or develop the instructions. So that will be covered in next tomorrow session by Dr. Ashish Sharma. Then today, that's for the today all. You can leave and we will meet in 11 a.m. tomorrow. Thank you for your attendance, participations for the today. One by one, you have all have to leave the session.